नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। और प्रदीप नाम्बियार जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ है, हमेशा आपके साथ ही रहेगा और हमेशा आपकी बात करते हैं हम लोग। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रदीप जी, वो कल दीपक केदार जी हमारे शो में आए थे। बिल्कुल सर। और उन्होंने दलितों के बारे में बात करी और बाकी पिछड़ी जातियों के बारे में बात करी, शोषित वर्ग के बारे में बात करी। यस यस। दिल दहला देने वाले कुछ हादसे उन्होंने बताए। अब मेरा ये कहना है कि साहब, आज की तारीख में जिसकी सरकार है उसको इस विषय में जरा अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। यस यस, बिल्कुल सर। और आज भी 76 साल के बाद 1947 में वी अचीव्ड इंडिपेंडेंस। यस यस यस। और आज भी अगर दलित वर्ग, आज भी आदिवासी हमारे शोषित हैं और मराठा समुदाय जो है अपने आप को शोषित वर्ग में लाना चाहता है, लिहाजा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। देयर समथिंग रॉन्ग, दैट मीन्स इन द मैनर इन विच वी हैव डेवलप्ड, प्रदीप जी, where even the Marathas, effectively the ruling class of Maharashtra, they feel that they are now part of the exploited, persecuted people. There seems to be something wrong here. So when the Congress says that problems of unemployment, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है, they talk about various kind of corruption that is prevailing in system. So they are not wrong. They are बेरोजगारी से आजादी, हर चीज से। तो and as we said that even if one segment of this section of the society believes that there's an element of fear, the element of being sidelined, then the government has some work to do. The government needs to, it's the government's responsibility, as the constitution says, we the people. So we have to get everybody. The government, it's a duty of the government to say that nobody is in isolation, everybody is brought the mainstream of the society, and problems of unemployment, problems of development are solved. Yes. You can't have a system where some sections of the society feel neglected. They don't feel a part of the society. They feel persecuted. Exactly. So these things cannot, it's a duty of the government to see that these things don't happen. Because that's what our constitution, our cabinet, the entire cabinet swears by the constitution. Justice, equality, liberty, fraternity. प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जातीय आधार पर अगर कोई गुनाह होता है तो उससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। Exactly. I think everybody needs to wake up to that. Gee. One thing is that we have not reached a stage where everybody feels financially secure. So reservations are going to stay the way. Not only, I think this government of Prime Minister Modi came with 2014 with a thing that they will have an equality on all levels. Probably that equality has not been achieved. So some sections feel the urge to get more protected. So reservation, the call for reservations. Probably, but that always happens when you have jobless growth. Exactly. That always happens when heavy industry or a particular section of the economy gains exponentially, as a result of which your GDP grows. But that trickle-down effect has still not taken place, wherein people have still not got jobs, people's income has not gone up, their own wealth has not gone up, and it is becoming more and more difficult for people to maintain the kind of lifestyle they are used to. तो जब ऐसी बात होती है तो लिहाजा dissatisfaction तो होनी है हर जगह पे। अब हो रहा है, I mean there is rampant everywhere because the call for more and more reservations from all sections, many sections of the society, whom we thought were affluent in one day, whom we thought are well taken care, whom we thought are very self-sufficient. The calls for reservation is coming from those sections of the society. That means there is something that is missing where the government talks something but the actual reality on the ground is something different. जो reality ground पे है उस पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा. Though the Prime Minister says that अभी जो उनका भारत विकसित यात्रा जो चलने वाला है, so विकसित भारत संकल्प यात्रा, in that he proposes to get in touch with the villages. हर विलेज से टच करेंगे, उनके रिक्वायरमेंट, he'll find out whether his schemes have reached the poor. So he has been inspired by Mr. Rahul Gandhi. But 2013 में जिस यात्रा वो किए थे, I think it's unbeatable before becoming the Prime Minister. Length and breadth, जो जिस प्रकार से संग, and the way the people had accepted him, उन्होंने कंधे पे बिठाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था और 2019 में उससे भी ज्यादा मैंडेट दिए
और कल अमित शाह जी ने कहा कि 2019 का मैंडेट को हम सुपरसीड करेंगे, ओवरपावर करेंगे, ज्यादा सीट्स लेके आएंगे. So this time Prime Minister Modi, Amit Shah said is going to come with more than 2019. तो on what basis? 2019 में उनको 303 सीटें मिली. Yes sir. और हम ही लोग थे यहीं पर जो बोल रहे थे कि भाई 303, 305 के करीब आएंगी. Exactly, exactly. और आज मैं बोल रहा हूँ 350 आएंगी. Yes, yes. क्योंकि सामने वेरी अनफॉर्चुनेटली क्या है, दुखद बात क्या है, मैं महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा. महाराष्ट्र में अब भी कांग्रेस बहुत ज्यादा ताकतवर है. कांग्रेस को नकारना मुश्किल है वो. लेकिन बाकी देश में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आपके सामने हैं, सीधी सादी बात है प्रदीप जी, दे हैड द बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी टू डिफीट द बीजेपी हियर, एंड somehow the other the BJP was able to turn it around. So I don't know what's going on over there. हो सकता है कि कांग्रेस के आंतरिक झगड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. हो सकता है कि ईवीएम मशीन का कुछ हो, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन ईवीएम मशीन तो जाने वाली नहीं है. वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न टू बैलेट पेपर, एब्सोल्युटली अनलाइकली. तो क्या करेंगे आप लोग? A victory is a victory. A victory is a victory. I mean, as a defeat has 1,000 excuses. कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ. But you know that something is going to happen. You need to preempt it, work towards it. Again, if somebody is blaming the EVMs, what have you done to see that the EVMs are not there? What is the protest? As you said, everybody should get together and But protest. they have not done it. They don't do it. Only winning में होता तो ठीक है, और हार गया तो बोलेंगे EVM का गड़बड़ था, हम जीत रहे थे, हमारा ये था, Rightfully हमारा वो था. speaking, अगर ऐसी बात है तो इवन इन तेलंगाना दे शुड से कि वी डोंट एक्सेप्ट दिस रिजल्ट. 40% वोट शेयर जो बोस्ट कर रहे हैं कि 40%. नो, आई एम नॉट. अभी डाउट्स है, लोकतंत्र है. एवरी क्वेरी नीड्स टू बी आंसर्ड. Every justifiable query needs to have a proper justification. So if there's indeed all the political parties now, as the India alliance says, Mr. Modi has got only 38% of the vote share. 62% of the vote share is still with the India alliance if they get together. And if they get together and put in a demand, why shouldn't it be met? But this EVM problems तो आपको सर पहले से चल रहा था. We had Kirit Somaiya taking up this when Manmohan Singh was the Prime Minister. और सबसे बड़ी बात घोटाला है जी. लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि कांग्रेस का ओवरऑल वोट शेयर अगर आप देखें चारों स्टेट्स को मिला करके तो तकरीबन 40% के करीब बनता है. 40%. यस. अब मेरा ये कहना है कि अगर इंडिया अलायंस साथ में हो जाती है और इंडिया अलायंस एकजुट हो जाती है और इनमें एकता, वास्तविकता में एकता आ जाती है और अकल से अगर ये लोग काम करें, स्ट्रेटेजिकली काम करें, तो आगे 10% और बढ़ाना मुश्किल नहीं है. अगर 40% वोट शेयर जो है 40% पे सिर्फ कांग्रेस ला सकती है, तो आगे 10 या 12% अगर कहीं और से बढ़ गया तो बड़े इत्मीनान से आप 50% के ऊपर जा सकते हैं. और एक बार आप 50% के ऊपर चले गए, उसके बाद सामने वाले का जीतना नामुमकिन है. मेरा ये कहना है कि लेकिन जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, अब 19 तारीख को उनकी मीटिंग है, क्या होने वाला है कुछ मालूम नहीं है. अब कोई बोलता है फला को कोऑर्डिनेटर बनाना चाहिए था, कुछ कराना चाहिए था. आई एम नॉट श्योर whether or not the India alliance has it in itself to be able to win from this kind of a position or to be able to gain the people's trust. क्योंकि आज भी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जैसा आपने कहा, एक तरफ नरेंद्र मोदी की गारंटी, दूसरी तरफ कांग्रेस की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी सर, राहुल गांधी जी की जी. तो what I'm trying to say sir, it's always the leader's speed and leader's thrust that determines the rate of the pack. Now here in Congress, who's the leader? Who feels the need that हमको करना है? We have to get together. We have to get everybody on board. Only Rahul Gandhi. No, but Rahul, sir, 2013 में we could see the zeal of Prime Minister Modi. वो जो thirst था, वो तड़प था, वो भूख जो पाने का, that spirit, it got the people together. It brought everybody together. We need somebody in the Congress top leadership, central leadership, who's going to lead the way, who's going to lead. An example of lead means getting all on board. If you talk about getting 62% vote share, you need to talk to all segments of society, and as per today, your work should have been already done 50%. या आप तैयारी नहीं हो गए, आपका कुछ तैयार नहीं है. जैसे उनके ही दल कहते हैं, जो अलायंस पार्टनर्स कहते हैं कि ये तो टी पार्टी हो रहा है. What has happened beyond tea party? Now they are not serious. Frankly speaking, they are not serious. As on, if they believed that India alliance had to meet, they could have met there and also. Even when the elections were going on, because
You don't have time. 2024. It's already December. मई में चुनाव है आपका. 4 महीने बीजेपी का प्लान है. जनवरी में उनका पूरा यात्रा शुरू होने वाली है. सबसे बड़ी बात यह है कि मई के पहले 2 महीने पहले जो है आचार संहिता लग जाएगी. इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाएगा. अब इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक बार लग गया, उसके बाद द होल इक्वेशन बिकम्स डिफरेंट. बिल्कुल सर. एंड समहाउ द अदर द इलेक्टोरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट इज नेवर अप्लाइड ऑन द प्राइम मिनिस्टर. वो जाकर के जो मर्जी अनाउंसमेंट कर देते हैं, वेलफेयर स्कीम जो भी अनाउंस करते हैं, yes. वो सिर्फ आप ही पे लगती है. नाउ दीज आर थिंग्स दैट यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट. माय पॉइंट is no use to say all this is unfair. Fact is, this is the situation on the ground. Ground पे situation ये है और उसके हिसाब से आपको चलना है. But I still say the Congress with 40% vote share still has a chance. You can't write off the Congress. So 40% अगर vote share आपका where's the है. question of writing off the Congress? Nobody wants to write off the Congress. Everybody wants Congress to perform excellently, so they give a challenge to Prime Minister Modi. अभी ऐसा लग रहा है कि उनके पूरे planned है और India Alliance has to get its act together. They have to move, and the whole country is waiting for a fantastic fight. They said it should not be a one-sided affair. I have a different view on this. We'll ask Mr. Rakesh Shetty, who's with us right now from the Congress. I have a slightly different view. Even if the India Alliance doesn't come together, so what? Let's say so what? Yes, exactly. The Congress is there. Yes. कांग्रेस है ना. अभी 40% वोट जो है वो तो कांग्रेस का है. बिल्कुल है. और इंडिया अलायंस नहीं आती तो ना है. आप काम करिए. और साउथ इंडिया में फुल प्रेजेंस इज फुल साउथ इंडिया में है कांग्रेस का. नॉर्थ इंडिया बीजेपी का है, साउथ इंडिया कांग्रेस का है. भाई कर्नाटक में, तेलंगाना में आप जीत चुके हैं ना. यस. हो सकता है आंध्र प्रदेश में जीत जाए, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड दे हैव प्रेजेंस देयर. They have presence there. Let's go across to Mr. Rakesh Shetty. Rakesh Shetty साहब नमस्कार. नमस्कार राजू जी, प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार. Lovely to see you again. Lovely to see you again. You seem very tired. What is the matter with you? Have you been working very hard? No. Looks like it. I was reading some books. Okay. You can go back to your reading after you finish with us. All I'm saying is, on December the 19th, the India Alliance is going to meet. But my view is that even if the India Alliance doesn't come together, some people of the India Alliance don't come together. So what? I still say that these election results show that the Congress is the biggest challenger to the BJP. You have a 40% vote share, even in states which you have not won. And you have won in Telangana, you have won in Karnataka, you have won in Himachal Pradesh. झारखंड में और बिहार में आपकी सरकार है, but you are part of the government. मेरा ये कहना है कि why can't the Congress on its own mount a credible and strong challenge to the BJP? I'm sure you can. Rakesh Shetty sir. Definitely Raju ji, and if you remember that we always never do a pre-poll alliance, but now the situation has changed, and now to tackle BJP and their missionaries, Congress party has decided to get into alliance with other state parties, and we have formed the India Alliance. In last 2-3 months, while there was election going on in 5 states, that time this alliance was not existing because we were very clear that this alliance, India Alliance, we are working for a different goal, that is Lok Sabha election 2024. And we are getting ready for that. We are very much ready, and we are ready to work with our alliance partners. Now coming back to your question, Raju ji, yes, we can fight this alone, but as a policy decision, party has decided and to fight with like-minded other coalition partners, and we are doing it. लेकिन सर ऐसा है कि आप बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स हैं आपके जिस दिन वो लाइबिलिटी बन जाते हैं, when they become a liability, then becomes a problem. Like for instance, what Mr. Stalin Jr. said with regard to Hindutva. Now, I don't see, and then somebody else said something to do with Gaumutra states and all that. Now, my point is, they are more of an embarrassment and a liability to the Congress. Because if there is one particular party which understands the soul of India, which represents the soul of India, it is the Congress party. You've been in existence since 1885. मेरा ये कहना है, आपसे ज्यादा भारत को और कौन जानता है साहब? सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है. यहां तो आपको क्लियर कट, मेरी समझ में आपको एक क्लियर कट मैसेज भेजना चाहिए जितने भी इंडिया अलायंस के सो कॉल्ड पार्टनर्स हैं कि साहब या तो वी अराइव एट अ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम or a common minimum program, whatever you want to call it, and say these are the subjects which will be avoided,
और इस जगह पर हम लोग बात करेंगे, और एल्स जयराम जी की, व्हाट डू यू थिंक राकेश शेट्टी साहब? Yeah. See, it's very clear. Rajiv, you said कि yes, a few members of the party had said Gaumutra states, and we have very strongly objected to it. Yes. And some parties even try to make it north versus south. We are totally against it because as a Congress party हम सबको साथ में लेके चलने पे बिलीव करते हैं. आप नॉर्थ हो, साउथ हो, दलित हो, आदिवासी हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वी डजंट मेक अ डिफरेंस बिकॉज भारत ये जो है सभी का है. एंड वी विल नेवर फॉल इनटू दैट ट्रैप ऑफ मेकिंग नॉर्थ वर्सेस साउथ. लाइक इवन भारतीय जनता पार्टी वांट टू डू इट, बट वी आर स्ट्रांगली, वी हैव ऑलरेडी कंडेम्ड इट. एंड हाँ, हमारे जो अलायंस पार्टनर्स ने जिसने भी गलत स्टेटमेंट दिया, वी हैव स्ट्रांगली condemned it. We have said this will not be done. Shetty sir, I want to draw your shortly. Kerala, CPM, they have attacked Rahul Gandhi. Now this is unacceptable when India Alliance is there. They said Rahul Gandhi should fight from that area where BJP can feel threatened. He is fighting the CPM. Rahul Gandhi should contest against the BJP. Now if this kind of statements are coming from your alliance, then it becomes a very difficult issue for you for 2024. ममता जी उधर कुछ है, शरद पवार जी कुछ और बोल रहे हैं, नीतीश कुमार is saying something. Now, not only telling about something, but they are saying Rahul Gandhi should not contest from Kerala. How do you see that, Shetty sir? That's a very serious. See, the CPIM will have their own opinion, but you very well understand, Pradeep ji, when Congress party is contesting election, it will decide who will contest election and from where, and no one can stop us. And well as the alliance goes, जो सीट्स ऑलरेडी कांग्रेस जीत चुकी है वहीं से कांग्रेस लड़े, और वो कांग्रेस का प्रोगेटिव है कि वो किसको वहां से कंटेस्ट कराएगी. यस. और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वी डोंट डिसाइड कि सीपीएम किसको फील्ड करती है, कि सीपीआई या ममता बनर्जी कहां से लड़ी या अखिलेश जी कहां से लड़े. सी, एक एलोकेटेड सीट होने के बाद देन द पार्टी विल डिसाइड हु इज गोइंग टू कंटेस्ट. इंडिया अलायंस will definitely do a seat sharing. Seat sharing होने के बाद हर पार्टी अपना कैंडिडेट को उतारेगा. I think everyone should mind their own business in this. That's right, but they don't. That's the problem. Now over here, I would like to ask you another question, Mr. Rakesh Shetty. Unprecedented, what has happened right now in Parliament. I'm not even talking about the security breach. Security breaches have taken place earlier. Sir, 15 MPs have been suspended. 15 MP. 50 opposition MPs. Interesting that एक member parliament attend नहीं है, वो भी suspended है. जी. So it clearly shows कि ये सब ऑफिस में बैठ के डिसाइड हुआ होता है किसको सस्पेंड करना है. Can you believe MP who is not present in the parliament, अगर आप उसको भी सस्पेंड करते, इसको हम लोग पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे. एंड सेकेंडली, whoever talks about Narendra Modi, whoever talks about Adani, whoever talks about parliament security, you are suspending them. I think this is a very big failure, and this is what democracy was all about. If a member of parliament will not be allowed to raise question in the house, in the parliament, then what is his job then? That what is the question. Shetty Sahab, Kharge Sahab ne rightly said, Kharge Sahab said 15 MPs have not suspended, but the democracy, Loktantra has been suspended in India. That is what Mallikarjun Kharge Sahab said. But do you think that Rahul Gandhi also has been continuously talking that Loktantra khatre mein, opposition is being targeted, minorities are being targeted, right-wing activism is on the forefront, it is rising in a big way. So when Rahul Gandhi said all this, I mean, whatever the results, you don't think थोड़ा और push देना पड़ेगा? लोकतंत्र खतरे में हो दिख ही रहा है, because everything seems to be happening in the parliament. And Mallikarjun Kharge's statement stands tall. He said 15 MPs are not suspended. Democracy is suspended in this country. Oh, very true. And I think Rajiv ji and Pradeep ji, you will understand. If you see how this entire thing works, is very clear. Whoever talks against Bharatiya Janata Party, whoever talks against Narendra Modi or Adani, either you send a CBI, ED, income tax, or if they are not in that, then you
suspend that member of parliament like you did with Mona Mitra. And we saw now if that is not working, then you're suspending these MPs. I think this is a very bad situation and it is a shame. And no one is talking about a Lok Sabha speaker is supporting them. Lok Sabha speaker should be neutral. Once you become a speaker, you should be neutral to all party lines. But it is not happening. It is very sad to see. Even Lok Sabha speaker is taking sides. And I think democracy is failing in this country if this happens. No, but the only thing is, this is absolutely crazy. I mean, what do you attribute this to? Is it a feeling of power, or is it an exhibition of cowardice? No, I think it is a, if you see the entire thing, it is a fear. That's it. Because this is a fear because Narendra Modi doesn't want anyone to discuss Adani and his relation. And whoever talks about their relation, immediately you will see that there will be ED, income tax, everyone pouncing on that member of parliament. Bharatiya Janata Party's troll army is going to troll them. That's what is happening. No one is bothered. As far as I understand it, sorry Pradeep, Yes, one yes, second. yes. As far as I understand it, and as far as the world understands it, not just me, democracy is the right to dissent. Correct. Democracy is the right to disagree. Right to agree everybody has. That's Correct. a dictatorship. So if parliament में, if people cannot disagree, अगर Correct. सांसद अपनी असहमति जता नहीं सकते, तो बाकी देश का क्या होगा सर? राकेश शेट्टी साहब Correct. बताएं. Very bad. And what Karge Saab said is completely true. And we need to understand now, even unless and until common man doesn't fight against Bharatiya Janata Party, no one can win against them. Because you have seen what has happened in these 3 states. The entire media narrative has been controlled by Bharatiya Janata Party. Say a simple example. Narendra Modi used to talk about when Aam Aadmi decided to give some services free for ladies in Yes. the Delhi buses, I suppose. Immediately he gave out a statement saying Muft ki revdi. And today what you are doing, whatever Congress has promised, you have promised the same things. And what is this? If you see Madhya Pradesh, these girls and women are being given Ladli, Behna, Yes. 1500 rupees per woman. What is this? This is not revdi. So whatever you say, people will not believe it in future. Because I will talk about a simple policy. Amit Shah always flanks himself and says कि एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए. He says that, right? You have heard this. But जब गौ हत्या की बात आती है, there are around 18 states where BJP is directly in power. Out of that, only 10 states they have banned gau hatya. Yes. Remaining 8 states still like Goa, Mizoram, Manipur, everywhere gau hatya chalu hai. I am not saying we are objecting it or anything, but that policy what you come up with, ek desh, ek kanun, it is totally false. It is farce. You are making a fool out of the people, and it will not work. Now simple thing. राकेश शेट्टी साहब, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाह रहा हूँ. आपको आवाज आ रही है सर? Can you hear me? 2004 से लेकर के 2014 तक, 2014 अप्रैल तक आपकी सरकार थी. वहां पर छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता था या कुछ भी हो जाता था, द भारतीय जनता पार्टी यूज्ड टू होल्ड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री. द प्रोटेस्ट वर नेशन वाइड. नंबर 1. Number 2, you had a gentleman called Mr. Anna Hazare, who has gone into hibernation now that the BJP is in power. He held that entire thing at the Ramlila Maidan. We were all there, we saw it. Against your government. So, is the Congress searching for its own Anna Hazare? Rakesh Shetty sir? See, Anna Hazare was a movement, but this movement was completely supported by RSS. Yes. Because after that Anna Hazare tried to do such movement, he did not get the support. No, he didn't. Because the media is not supporting, people are not supporting, your social media troll army is not supporting. When Congress was in power, the same media,
was backing Anna Hazare. Each and everything, whatever he was saying was right. He had become a next Gandhi. Now my question is, what has happened to him? Why he is not talking? He wanted Lokpal to control even the Prime Minister and the President. Now, is there a Lokpal in this country? No. But now you don't feel a need of a Lokpal in this country. This entire agitation was only sponsored to defame Congress party, not for Lokpal. And even people are realizing it now. Shetty Sahab, the BJP talks about development, it quotes all the foreign international agencies. Moody 6.7% growth, IMF 6.3 growth, Goldman Sachs 6.3 growth, Morgan Stanley 6.5. What Congress has been highlighting in the parliament? The Congress has been trying to highlight Prime Minister Modi that आपने कोई भी वादे आपके पूरा नहीं किए. ब्लैक मनी नहीं आया, काले धन वापस नहीं आया, पेट्रोल 50 रुपया बोले थे, डीजल 40 रुपया, that has not come. 2022 हाउसेस देने वाले थे, it not come. Rupee versus dollar stability, that has not come. 2 crore jobs has not come. You know, inflation has not been reduced. MSME is out. So where is the development? I mean, is only the foreign institutional, foreign credit agencies says that you are doing well, is that the only criteria? How do you see that, Shetty Sahab? Now, whenever, see, it is all about how your comfort level. Now, Hindenburg gave a report, you are not going to accept it. CAG spoke about the corruption going on in Modi government. You are not even accepting it. Now, there is a Dwarka expressway. Yes. According to CAG, the cost of 2 kilometers of that highway is something like 500 crores. But no media is going to pick up that CAG, and this same CAG had blamed Congress party for 2G spectrum scam. Later we all found that this number is just in air and there is no actual money involved. And all these culprits, whoever's name was there, are all sent free by the Supreme Court. So see, when Bharatiya Janata Party previously, when they were in opposition, they used to rely on CAG. And this same CAG has given a list of corruptions in Modi government, but media has become so biased, they are not even referring to it. And what development they are talking about? Pradeep ji, you rightly said, what about the petrol price? You were supposed to make it 50%. Farmers' income, you were supposed to give them double. So this all agenda, whatever points you have given earlier, you have failed to fulfill it. Now, if you clearly remember, Narendra Modi used to talk about Panama Papers, and there were around 120 people name which was given. He was supposed to expose them. Those name was never came in public, and no tax was taken from these people. So where is the list? He was supposed to disclose the true how Subhash Chandra Bose died. Where are the files? Why is he not talking about it now? He was saying that Congress has hidden some secret file, if you remember clearly. Yes. He used to talk about that. Now he has changed the goalpost. The complete agenda is something different now. He thinks that people of this country don't remember his promises, what he made in 2013. If you remember, he had clearly said, people who has paid their income taxes, I am going to give them a relief. Yes. If you clearly remember, what happened about that relief? Nothing has happened. Now, crude oil prices, if you see, due to Ukraine-Russia war, the crude oil prices has come to 50%. You can easily bring this petrol taxes down. If you bring it under GST, the diesel and petrol tax rates would be something like 55 or 60 rupees. You can do it easily, but they are not doing it. During Vajpayee government, only 1 rupees they had charged for development of roads. And by the end of 5 years, something like 1 lakh crore rupees was collected by Bharatiya Janata, that NDA. Today, you are keeping more than 50% as taxes. So, I want to know where this money is going. That's right. But just one small thing. The Brent crude prices, which is what we follow, by the way,
today, Pradeep ji, Yes. is at $76.95 a barrel. And it was $150 dollars per sorry, sir. barrel during Congress. Sir. Yes. $154 Yes. per barrel. And that $154 per barrel. That time the rate was something like 65 rupees. 65 at the highest. Highest. At the highest. 52 से फिर बाद में 65 हो गया था सर. 65 रुपए बाद में गया है. It was, so all I'm saying is at the moment some relief can be granted to people. बड़े आराम से. चलिए 50% नहीं 20% ही कम कर दो. Sir, Modi's tax system is like crude oil prices will go down, he will increase the tax. The moment it goes down, again he increase. So if you bring it under, वो कहते हैं ना एक देश एक tax, one nation one tax. अरे bring it under GST. Let the people have that benefit. Let petrol and diesel come in 65-70 rupees. It will come down, sir. That's right. If you no, really but over there to say, but Rakesh Shetty Saab, to be fair, what the finance minister has said is the states are not agreeing. They say the states are not agreeing because their revenue will suffer. That's why they don't want petrol and diesel to be under GST. That's what they have said. Rakesh Shetty Saab. They said the centre wants to bring petrol and diesel prices under GST. Sir, my question is very simple. Opposition have no strength in Lok Sabha and Rajya Sabha. Today, whichever bills you want, you are getting it passed. You are not even bothered to listen to opposition. So why this reason they are giving? Yes. No one is going to buy this reason. When you promise this country that you are bringing the petrol and diesel prices to 50%, LPG gases price to 50%. So where is the question? And today here you are here to govern and fulfill the promise. And one gentleman had said that the petrol कितने में बिकेगा प्रदीप जी 25 रुपए में 30 रुपए में अपने बाबा रामदेव जी ने बोला था ऐसा और आजकल बोलता है कि मैं सवाल का जवाब नहीं देता क्या कर लेगा तू ये उनका जवाब था जब किसी रिपोर्टर ने पूछा और दूसरी चीज है सर चलते चलते what about foreign exchange the price of the dollar we are stuck at 83 we are stuck at 83 to 84 I remember Narendra Modi telling this in the public. He said कि देश में रुपया गिर रहा है कि प्रधानमंत्री का इज्जत गिर रहा है इसमें दौड़ लगी हुई है. Now what he is going to say about this? नहीं वो बोल रहे थे कि बहुत जल्दी मेरी उम्र से भी ज्यादा हो जाएगा और हम जो है इसको नीचे लेकर के आएंगे ऐसा कुछ बोला था उन्होंने. अभी 100 बार कर दिया. I mean, but this is absolutely crazy. But all I'm asking you, Rakesh Shetty Saab, is the BJP has a lethal weapon. They have a hydrogen bomb, which you don't have. They have the Ram Mandir. They have Krishna Janmashthan. They have Kashi Vishwanath. They have Ujjain Mahakal corridor. वो आपके पास नहीं है साहब. और ये जो आप बात कर रहे हैं ना महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, पेट्रोल की कीमतों के बारे में, बाकी सब चीजों के बारे में, प्राइसेस के बारे में, कीमतों के बारे में, आपको इसमें मुझे ऐसा लगता है लुकिंग एट द रिजल्ट्स ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, all things being equal, if the EVMs have not been tampered with, I think perhaps you need to do a little bit more work on that. What do you think? Yesterday, in fact, Amit Shah said that uniform civil code भी हम लोग implement करेंगे. That's what he said. Yeah. Uniform civil code भी हम करेंगे. कहा था. Absolutely, very, very, totally assertive manner. Shetty Saab. See, he said yesterday, if you listen to his talk in that some conclave was going on. India Today conclave was going on, and he said he is not only going to change the Citizenship Act. He even said कि इस देश का कानून को भी वो बदलने वाले. जी. So हाँ उनको एक्सपीरियंस भी है बिकॉज कोर्ट ने एक बार उनको तड़ीपार किया था तो उनको तो कानून की बहुत ज्यादा नॉलेज है. वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सब कुछ है, कांग्रेस के पास सच्चाई है सर. हम लोग स्लो है, हम धीरे से ग्रैब करेंगे, मीडिया के ऊपर कंट्रोल नहीं है, मगर हमारे पास सच्चाई है और ये सच्चाई कांग्रेस कार्यकर्ता जनमानस पे लेके जाएगा. सर मीडिया के ऊपर किसने कहा आपके पास कंट्रोल नहीं है? ये बड़ी पुरानी बात आप कर रहे हो सर. ये 5 साल पुरानी आप बात कर रहे हो. आज की तारीख में जिस मेन स्ट्रीम कॉर्पोरेट मीडिया की आप बात करते हैं ना उसको उस पर कोई विश्वास करता नहीं है अभी. लेट्स बी वेरी क्लियर. दे हैव सक्सीडेड. वहां पर आप लोग सफल हुए हैं ये बताने में कि भैया इनकी बात मत मानिए, जब ये सच बोलते हैं तब भी चेक करना है इसको. मालूम नहीं कि सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे. अगर ये तारीख भी बताते हैं
अगर कॉर्पोरेट मीडिया आज अगर ये भी बोलता है कि आज दिसंबर 14 2023 है, फिर भी चेक कर लो है कि नहीं है, कुछ मालूम नहीं है इनका. लेट्स बी वेरी क्लियर. Right. So over there, as far as social media is concerned, social media platforms are concerned, the internet is concerned, you have a huge weapon in your hands. I mean, come on. You जो जैसे आप बात करते हैं राकेश शेट्टी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वैसे जो कांग्रेस के जितने वेब हैंडल्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, आपके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, फेसबुक पे जितने आपके पेजेस हैं, बाकी जितने भी वो जो रेडिट है, रेडिट अकाउंट्स आपके हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं करते इस तरीके से बात? I mean, you talk so well, you talk so beautifully. आप अपनी बात इतनी बढ़िया तरीके से सामने रखते हैं, बाकी सब लोग क्यों नहीं रखते सर? And not only that, on Hindutva also, you have done such a lot where Hindutva is concerned. चाहे वो सोमनाथ टेम्पल हो या राजीव गांधी जो राम टेम्पल के लिए किए, but you are not talking about it, शेरी साहब. आप लोग बात ही नहीं करते, you are soft on that lines. नहीं, बात करते बट दिखाते नहीं. The question is, तो आपको खुद दिखाना चाहिए सर. हम तो है ना सर दिखाने के लिए. वी आर अ वेरी स्मॉल चैनल, लेकिन फिर भी हम तो दिखाते हैं सर. और हमारे जैसे लाखों और लोग हैं जो सच दिखाते हैं. आइदर वे, सीधी बात है सर. करेक्ट. नहीं, वो काम चल रहा है. और आपको पता होगा कि देखिए, फिर भी एक लिमिटेशन आ जाता है. आपको पता है कि फेसबुक के जो ओनर है, ट्विटर के जो ओनर्स है, उनके दिल्ली ऑफिसेस पे ईडी ने रेड किया था जब किसान आंदोलन चल रहा था जी. और उनको कह दिया था अगर आपको इंडिया में काम करना है तो किसान आंदोलन को ब्लैकआउट करना है. एंड इट इज बीइंग हैपनिंग. बट द बेस्ट पार्ट इज कि धीरे धीरे जनता को ये रियलाइज हो रहा है, क्योंकि आप हमारा राजस्थान में देखिए डिफरेंस इज 1.5%. जी. छत्तीसगढ़ में देखिए हम लोग करीबन 3.5% से हारे हैं. मध्य प्रदेश में हाँ डिफरेंस है 8% का. इसका मतलब ये है कि पहले जैसे कांग्रेस हारती थी बीजेपी से तो 10% से ज्यादा से हारती थी. ये पहली बार है कि हम लोग बहुत मार्जिनल से हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे. इसका मतलब धीरे धीरे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सच्चाई पता चल रहा है. लेकिन राकेश शेट्टी साहब, एक चीज आपसे पूछनी थी मुझे. आई रियली वांटेड टू नो. ये मेरे गले से बात नहीं उतर रही. आई कांट सीम टू रैप माय हेड अराउंड दिस. देयर वाज अ पिक्चर ऑफ दिस चैप फ्रॉम द बीजेपी और हुएवर pissing, actually urinating on a tribal in Madhya Pradesh. उसके बाद भी almost 100% ट्राइबल वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा. What's going on? नहीं, 100% नहीं. हाँ, 100% नहीं पड़ा है. 80%, almost 100% ही हो गया सर. नहीं, हाँ, बट ये स्ट्रैटेजी था उनका. they have fought the election very well. अभी उस पर बात करके फायदा नहीं. मगर मैं आपको बताता हूँ, पहले हमें भी लगा मध्य प्रदेश में कि वुमेन्स हैड वोटेड फॉर बीजेपी, मगर जब डेटा बाहर आया तो ऐसा नहीं था. वुमेन्स ने कम वोट किया, जेंट्स ने ज्यादा किया है. बट स्लोली मुझे ऐसा लगता है हम लोग का जो वर्कर्स है, सेवा दल के वर्कर्स हो, कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स है, अभी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग ऑलरेडी शुरू किया है और लोगों को एजुकेट करना चालू है कि किस तरह 2013 से पहले क्या थी, देश कहाँ पे था, 2014 से 19 में कहाँ पे है. क्योंकि पहले जितने सड़क बनते थे, डेवलपमेंट होता था, सेम फेज में चालू है, उल्टा कम है. मगर जो वादा एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस देश की जनता को किया वो आप पूरा नहीं कर रहे. आर्मी का जो स्ट्रैटेजी, आर्मी का जो उपलब्धि है उसको अपना उपलब्धि आप नहीं बना सकते. देश के साइंटिस्ट का जो उपलब्धि है उसको आपका उपलब्धि आप नहीं बना सकते. आपका उपलब्धि वो है जो आप पॉलिसीज लाते. तो आप देखिए ना, 9 साल में ऐसा कौन सा पॉलिसी आपने लाया जिसके कारण इस देश का युवाओं को कोई अच्छा काम मिल रहा हो, इस नौजवान हो. हमारे फौज में जो जवान है, आप 5 साल में के लिए एमपी रहते हो तो आपको पेंशन मिलता है. मगर जो नौजवान दोस्त हमारा जो आर्मी में जा रहा है उसको आपने टेन्योर 4 साल किया क्योंकि आपको पेंशन नहीं देना है. मतलब आपके लिए सब कुछ आप करोगे बट इस देश के नौजवान के लिए आप कुछ नहीं करोगे जी. ये एक एग्जांपल है. मैं आपको बता रहा हूँ, इंडस्ट्रीज के कुछ मित्रों को फायदा करने के लिए उन्होंने, जैसे हम कहते हैं ना कि किसानों के लिए 3 काले कानून लाए थे. आपको पता नहीं इस देश के जो वर्कर्स है, लेबर है, उसके लिए 4 काले कानून लाए. और उसका असर यह है कि आज लेबर के ऊपर बहुत सारा अत्याचार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और बंगाल से लेके गुजरात तक हो रहा है. तो मुझे ऐसा लगता है कि हर सेगमेंट में धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे
कि इन्होंने जो जो नीतियां अपनाई जिसका खामियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। देखिए आज कोई भी पॉलिसी आता है इमीडिएट पता नहीं चलता है, आपको एक 5 साल 10 साल लगता है उसका इंजेक्शन का इफेक्ट करने के लिए, और वही अभी हो रहा है। धीरे धीरे लोगों को ये सब समझ में आ रहा है और मेरे को लगता है 2024 में आप इसका रिएक्शन देखेंगे। जी, Shady sir, 2024 we just got 5 months left. 5 months left. No, I can't understand. You know, सोमनाथ टेम्पल सबको लग रहा है कि मोदी साहब ने बना दिया है, बीजेपी ने कर दिया, इतना प्रोपेगेंडा चल रहा है। एवरीबॉडी फॉरगॉट सरदार पटेल, राजेंद्र, सबका कांग्रेस, नेहरू, सबका nobody talks about it. The BJP presence itself that सोमनाथ टेम्पल से लेके हर मंदिर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर के मुंशी, आचार्य कृपलानी, बिल्कुल, अरे ये सब कांग्रेस के नेता थे भाई। बट प्रोपेगेंडा ये है कि मोदी जी ने बनाया है, मोदी जी ने बनाया। इनफैक्ट कल भी वीएचपी और बजरंग दल के लोग बोल रहे थे कि सोमनाथ से लेके अयोध्या से लेके हर चीज। सो आई थिंक शेडी साहब आप ही लोग थोड़ा स्लो है आपके हिंदुत्व को एस्पाउस करने में। See, the thing is कि मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि पहले जो बनाया व्हाट डन इज डन, अभी अपने फ्यूचर देखना चाहिए। मैं हमारे कांग्रेस के भी दोस्तों को कहता है कि कांग्रेस के लीडर्स ने क्या अचीवमेंट किया है, क्या क्या किया है, वो मत बोलते रहे। आगे आपका क्या प्लान है इस देश के लिए? यू आर इन 2020-23, आगे फ्यूचर देखो और अपना प्लान बताओ और लोगों को कन्विंस करो। पिछले बातें बार बार बता के कोई फायदा नहीं। पिछले हमारे लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया, देश को आजादी दिलाए, शहीद हुए, सब कुछ हो गया। देश मनमोहन सिंह जी जब सरकार में आए तो इस देश के गोल्ड जो है रिजर्व उसको गिरवी रख के आए थे, और जब 2013 में मोदी जी के हाथ में दिया बैटन, उस टाइम पे हम सरप्लस में थे, वर्ल्ड में नंबर 3 में थे सर इकोनॉमी में, और ऐसे सिस्टम थे नरेंद्र मोदी के हाथ में। इतना मजबूत देश मनमोहन सिंह ने दिया था। आज नरेंद्र मोदी ने 2014 से 19 में इस देश का हालत क्या किया आप सब देख रहे थे। Right, that's just about it as far as Mr. Rakesh Shetty is concerned. Rakesh Shetty साहब, all the very best to you, and I am reasonably certain you will do very well indeed if you were to strengthen your social media department, because people believe more in social media these days than they do in the mainstream channels. I don't watch mainstream channels anymore unless something very major is coming on. Right, thank you very much, sir. Namaskar. Thank you and Jai Hind, sir. Jai Hind. Right, and at the moment with us, I think we are having some problem with the guests. Mr. Ali Daruwala was supposed to join, but now he's out of the network. He's in a marriage. Mr. Yogesh Chile is in a rural area, and I don't think he can join. So, are we doing the show or are we ending it here? Will someone tell us, please? Right, thank you very much. So Mr. Chile is joined, and I hope he will remain with us because he is in a rural area and there is a problem with the network. That's what I was told. And Mr. Daruwala, who had earlier also said that he was going to be in a marriage and had agreed to join, but now he is in the marriage. That's it. Now, the point is, Pradeep ji, the fact remains that the Congress cannot just sit back and say, भाई ये होने वाला है। ऐसा नहीं होता है, काम करना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। अरे भाई, अगर मान लीजिए आप बोल रहे हैं बेरोजगारी है, आप बोल रहे हैं कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, आप बोल रहे हैं कि देश की स्थिति खराब हो गई है, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस जो है आज की तारीख में 94 रुपए 70 पैसे की डीजल की प्राइस है मुंबई में, और 106 रुपए का पेट्रोल मिल रहा है, तो लिहाजा आपको बताना पड़ेगा ना सबको कि ये हो रहा है। बिल्कुल सर। बट सर, और जहां तक सब्जियों का सवाल है, जहां तक तरकारी का सवाल है, सब्जियों का सवाल है, सबकी हालत खराब हो गई है। और तीसरी चीज क्या है, कांदे को लेकर के आज भी क्राइसिस चल रहा है। मेरा ये कहना है कि अगर कांदे को लेकर क्राइसिस चल रहा है, प्रदीप जी, भारतीय जनता पार्टी जब ऑपोजिशन में थी, प्याज के क्राइसिस को लेकर, यानी कांदे के क्राइसिस को लेकर के, बटाटे के क्राइसिस को लेकर के सब लोग सड़क पे आ जाते थे। अब कांग्रेस जो है वो इत्मीनान से बैठे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है क्या कर रहे हैं। एंड द ओनली पार्टी व्हिच इज जेन्युइनली वर्किंग बाय द वे इज ऑफ कोर्स द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। एंड फ्रॉम द महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वी हैव आवर ओल्ड फ्रेंड मिस्टर योगेश चिले। योगेश चिले साहब, नमस्कार। मातरम। जय भवानी, हर हर महादेव, वंदे मातरम सर, वंदे मातरम, हर हर महादेव। योगेश चिले साहब, अभी हर हर महादेव। गांव में है सर आप? कहीं आप रूरल एरिया में किस जगह पर है सर? सर अभी मैं आया हूँ राजापुर में आए तो मेरे गांव जा रहा था। क्या बात है सर, वंडरफुल। तो
अभी सुनने में यह है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अब रणनीति बना ली है और या बन रही है, और उसमें अमित ठाकरे साहब की जो भूमिका है वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि जो रिपोर्ट्स हम लोगों को आ रही है यहाँ पे, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आज की तारीख में जो यूथ है महाराष्ट्र के जो युवक है, दोनों लड़के और लड़कियां, वो अमित ठाकरे जी के बहुत बड़े फैन हैं। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि यंग वोटर्स का जो वोट है आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ अमित ठाकरे जी की वजह से। बताएं सर। सर पहली बात तो आपने अमित ठाकरे साहब को देखा रहेगा, आज के जितने भी पॉलिटिशियंस है, अभी उनको हाल ही में एक अवार्ड भी मिला था सबसे स्टाइलिश पॉलिटिशियन। तो वो दिखने में स्मार्ट भी है, और उनके पीछे जो नाम है माननीय राज साहब ठाकरे, सभी को मालूम है जैसे माननीय राज साहब जितने सुंदर दिखते हैं वैसे ही माननीय अमित साहब सुंदर दिखते हैं, बोलने का लहजा भी वही है। और 20 साल पहले जैसे माननीय राज साहब घूम रहे थे पूरे महाराष्ट्र, वैसे ही अमित साहब भी अभी पूरा महाराष्ट्र घूम रहे, सभी यंगस्टर्स को अपने साथ में ले रहे। आपने देखा रहेगा कि वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सेंसिटिव पर्सन भी है। परसों हमारे कार्यकर्ताओं ने कुछ कंपटीशन रखा था बुलक का, तो वहां पे भी जो उन्होंने सब किया, जिसके वजह से वो बुलक्स को जो तकलीफ हो रही थी, तब भी उन्होंने कहा था कि आपको जो भी कंपटीशन रखनी है आप जरूर रखिए, लेकिन किसी भी एनिमल को उसके वजह जिनके बदौलत आप जीत रहे हैं उनको कुछ भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इतने वो सेंसिटिव है। और पिताजी के तरीके से ही वो भी बेबाक होके बात करते, तो यंगस्टर्स को वो अच्छा लगता है सर। फैंटास्टिक। और जो दूसरी चीज क्या है कि जो आपकी यूथ एमएनएस यूथ है, यूथ विंग जो है आपका, और उसके अलावा जो विद्यार्थी सेना जो है, आज की तारीख में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो एमएनएस का जो विद्यार्थी सेना का कोई भी कहीं पर भी कोई ऑफिस होता है या शाखा होती है, लोग फौरन वहां चले जाते हैं और ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। 99% सक्सेस रेट आपका हुआ है, वो कैसे हुआ उसके बारे में जरा बताएं योगेश चिले साहब। सर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स बहुत छोटे रहते जी, कभी कभी उनका सिलेबस पूरा किया नहीं जाता, कभी उनके स्कॉलरशिप्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं जी। ये प्रॉब्लम छोटे हैं, आप थोड़ा स्टडी करेंगे, आपको अगर पार्टी का बैकिंग रहेगा तो कोई भी हमारा छोटा से छोटा महाराष्ट्र सैनिक जाके भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। हमारी पार्टी उस स्टूडेंट के पीछे खड़ी रहती है, जम के खड़ी रहती है, उस वजह से वो बिंदास होके वहां पे जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बैकिंग का इश्यू है। जो पार्टी अपने यंगस्टर्स को अच्छा बैकिंग देगी उसका भविष्य अच्छा रहेगा, ये हम जानते हैं। इसलिए हमारी जो स्टूडेंट विंग है उनके पीछे हम स्ट्रांगली खड़े रहते हैं। उन्हें वो गलतियां करेंगे हमको मालूम है, लेकिन गलतियों से ही वो सीखेंगे। वो जितने ज्यादा गलतियां करेंगे वो उतना ज्यादा सीखेंगे, ऐसे हम मानते हैं। सिर्फ हम उनको इतना ही बताते हैं कि जो गलती तूने एक बार की है दूसरी बार वो रिपीट मत कर, नया गलती कुछ कर। चिले साहब, अजित पवार ने जिस प्रकार से वो पीएचडी वाले चीज से कहा, तो मनसे ने बहुत विरोध किया, मनसे ने आलोचना किया, बोले ये आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, आप क्या बात करते हो। मनसे ने आगे पूछा, आप हजारों करोड़ मंत्रियों के बंगलों सजाने के लिए करते हो, मंत्री के गाड़ी के लिए करते हो, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हो, मगर स्टूडेंट्स और ऐसे पीएचडी सीखने वाली बात होती है तो क्या दिवे क्या मीन्स, इस प्रकार से आलोचना कैसे अजित पवार जी का स्टेटमेंट आप लोग ने आलोचना किया है चिले साहब। सर उन्होंने जो कहा है वो आलोचना करने जैसी बात की है उन्होंने। अगर आपके राज्य में ये कल्चर बढ़ता है, रिसर्च का कल्चर बढ़ता है, तो वो आपके राज्य के लिए अच्छी बात है। और जब आप पीएचडी करते हैं आपको वो सब्जेक्ट में 2 साल 3 साल कभी कभी 10 साल 15 साल रिसर्च करने के बाद आप वो सबमिट करते उस यूनिवर्सिटी में। तो इतनी मेहनत के बाद लोग जब पीएचडी करते हैं, आप उनको बोलते ये पीएचडी करके क्या दिए जलाने वाले, तो आपने कौन से महाराष्ट्र में दिए जलाए। आप भी तो अभी इतना पढ़ने के बावजूद, इतना आपको नाम मिला एज अ पॉलिटिशियन, उसके बावजूद आप एथिक्स पे नहीं चल सकते। आप उन लड़कों को क्या बोल रहे। तो अगर किसी राज्य के पॉलिटिशियंस की दिमागी हालत ऐसी है कि उनको स्टूडेंट पढ़ रहे इससे दिक्कत हो रही है, तो इससे ज्यादा दुर्दैव की बात नहीं है कोई। लेकिन योगेश चिले साहब, ये
अजीत दादा पवार के लिए कोई नई बात नहीं है। अजीत दादा पवार साहब ने, आपको याद होगा 2014 के चुनाव के पहले क्या क्या बोला था नहर में पानी को लेकर के, किसानों के लिए उसने यही बोला था, शैल आई यूरिनेट इन द कैनाल्स, मतलब मुतियाओं में नहर में पानी लाने के लिए। मतलब यही क्या है, किसकी पहले से आदत बनी हुई है, तो लोगों को लगता है ये सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते, इस वजह से लोग उनका सहते। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कहेंगे, वो करने के बाद फिर जाएंगे माननीय यशवंत राव चौहान जी के समाधि के यहाँ पे बैठेंगे और दूसरे दिन से वापस वही गलतियां करने लगेंगे। तो इनको असल में पीएचडी की जरूरत है। अभी इनको इनके खुद की जो गलतियां इन्होंने की है उस पर पीएचडी करने की आवश्यकता है इनको। ये सर दुरुस्त बात, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। मनसे के बहुत एक विंग ने ऑब्जेक्शन, सरकार ने जिस प्रकार से कांदा अनियन फार्मर्स का जो एक्सपोर्ट बैन है, एक्सपोर्ट बैन को लेके मनसे ने भी आवाज उठाया कि दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। सरकार को वो फ्री मार्केट होना चाहिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। आप इतना सारे ब्लॉकेजेस रखेंगे, हर चीज जो फार्मर्स प्लान, किसान प्लान कैसे करेंगे? वैसे आपने ऑब्जेक्शन उठाया, मनसे ने ऑब्जेक्शन उठाया, शरद पवार साहब ने भी ऑब्जेक्शन उठाया। शरद पवार साहब तो नासिक में अनियन फार्मर्स के साथ आंदोलन पर बैठ गए थे, बोले कि ये एक्सपोर्ट बैन आप हटाओ। मीन्स ठीक है, पवार साहब ने किया, बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्टिकुलर, बिकॉज आप लोग ने किसान के मामले को उठाया। चिले साहब सर, पहली बात तो पवार साहब ने जब खुद कृषि मंत्री थे, जो इस सरकार ने किया है एक्सपोर्ट के बारे में वही उन्होंने भी किया था। तो अभी आज वो खुद सरकार में नहीं है, इसलिए वो फार्मर्स के साथ बैठ रहे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। खुद की गलतियां वो छुपा रहे, बाकी कुछ नहीं। रहा सवाल फार्मर्स का महाराष्ट्र के, तो बेचारे पहले ही परेशान है। वहां पे यहाँ पे बारिश कभी भी आती है और उनकी पूरी मेहनत पानी में जाते हैं। तो अगर उनको सरकार का सपोर्ट आप नहीं कर सकते तो आप पॉलिसीज ऐसे मत बताओ कि उनको सुसाइड करना पड़े। पिछले 15 सालों में महाराष्ट्र में जितने किसानों ने सुसाइड किया है उतने सुसाइड शायद ही किसी राज्य में हुई रहेंगी सर। महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव स्टेट है, इसके बावजूद भी यहाँ की जो एग्रीकल्चरल पॉलिसीज है ये किसानों के लिए इतनी सेहतमंद नहीं हो रही है, तो उस पर स्टडी होना चाहिए। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे यहाँ पे जो एपीएमसीज है, ये एपीएमसीज असल में हर 10 किलोमीटर पे उनके लिए स्टोरेज होना चाहिए, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में वो नहीं है। उसके वजह से उनके जो प्रोडक्ट्स है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स है, उनको एपीएमसी में लेके जाना पड़ता है। वहां पे अगर उनको मान लीजिए प्याज का दाम मान लीजिए 100 रुपया क्विंटल वहां पे दाम है, अचानक कोई किसान फोन करता है, बोलता है अरे बाजू में 30 किलोमीटर पे जो एपीएमसी है वहां पे प्याज का दाम आपको 200 रुपया क्विंटल मिल रहा है। ये किसान बेचारा वहां से माल उठाता है और उस एपीएमसी में जाता है, तब तक वहां पे 100 किसान जमा हो जाते हैं और जहां पे 200 रुपया भाव मिल रहा था वही भाव 25 रुपए पे आ जाते हैं। और अभी इसने ट्रांसपोर्टेशन पे इतना खर्चा किया है कि ये अपना प्याज लेके वापस नहीं जा सकता, उसको 25 रुपए वो देना पड़ता है। तो इस तरीके की पॉलिसी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे एग्रीकल्चर के खर्च करना ही पड़ेगा। वो अगर आप नहीं करते तो अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिए इस तरीके से यहाँ का जो किसान है वो कम दाम पे अपना प्रोडक्ट बेचता है और उसको सुसाइड करना पड़ता है सर। जी, द हाईएस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स इन द एंटायर कंट्री इज इन महाराष्ट्र। फार्मर सुसाइड सबसे ज्यादा हैं और ये एनसीआरबी के फिगर्स हैं, ये नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के फिगर्स हैं। और दुखद बात यह है चिले साहब, सबसे दुखद बात यह है, दिल तोड़ने वाली बात है, दिल दहला देने वाली बात नहीं है, तोड़ने वाली बात है कि अभी तक जारी है, अभी बंद नहीं हुई है सर, अभी तक जारी है, आज भी जारी है। ना आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट सब्जेक्ट बट दिस इज ऑफुल। बताएं चिले साहब। तो यही सर हमारी जो ब्लूप्रिंट बनी है, हमारी पार्टी ने, माननीय राज साहब ने जो ब्लूप्रिंट बनाए हैं उसमें एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए जो उन्होंने प्लानिंग किया है, आप एक बार वो देखिए। मैं चाहे तो जब आपको मिलने आऊंगा मैं उसकी एक कॉपी साथ में लाऊंगा आपको देने के लिए, वो आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग किया है। मैं इतना बोल सकता हूँ एग्रीकल्चर पे क्योंकि हमारे हाथ में वो ब्लूप्रिंट रहती है, हम पढ़ते रहते हैं उसको। तो उसमें जो सॉल्यूशंस दिए हैं वो सॉल्यूशंस वाकई काबिल तारीफ है।
जो अगर इम्प्लीमेंट होते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के किसानों को सुसाइड करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसी को कोई मन से सुसाइड नहीं कर सकता। जब वो चारों बाजू से हतबल हो जाता है तभी उसको सुसाइड करना पड़ता है। तो आप थोड़ा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर खर्चा करेंगे तो आपको उनको सहूलत देने की जरूरत भी नहीं है। वो अपना प्रोडक्ट खुद बना के अच्छे दाम पे वो बेच सकते हैं। आप सिर्फ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, कोई सहूलत की जरूरत नहीं। कोई किसान नहीं मानता, आप उनको मजबूर कर रहे हैं सहूलत लेने के लिए। That's right. चिले साहब, एनसीए जो बजाज साहब बोल रहे हैं, एनसीआरबी ने लगातार 3 साल महाराष्ट्र को वन ऑफ द मोस्ट करप्ट स्टेट्स इन इंडिया वो पदवी दिया था। अभी एनसीआरबी ने यह भी कहा कि नॉट ओनली करप्ट बट ऑल्सो द मोस्ट रॉइट्स अगर पूरे कोई स्टेट्स में हो गया तो महाराष्ट्र स्टॉपिंग रॉइट्स, दंगल भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होने लगा है। तो मनसे का यह कहना है कि महाराष्ट्र कहां से कहां पहुंच गए। मनसे, आप लोगों का कहना है, मनसे ने इश्यू उठाया कि महाराष्ट्र क्या था, एक डेवलपमेंट बेस्ड स्टेट था। डेवलपमेंट अगर पूरे देश में किधर हो रहा था, महाराष्ट्र पर पॉइंटर था कि ये स्टेट है जहां डेवलपमेंट हो रहा है। तो आप लोग, मनसे का कहना आज है कि इतना खराब हो गया स्थिति कि 2 जनरेशन लगेगा कि महाराष्ट्र को पूरा अपने पुराने स्टेट में आने के लिए जो था पहले महाराष्ट्र। चिले साहब इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए आप। सर, पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र आज भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में 1 नंबर है, लेकिन अभी की जो नीतियां चालू है उस वजह से आगे के 2 या 3 साल में शायद महाराष्ट्र को ये अपना नंबर खोना पड़े। ये अगर हमको नंबर वैसे ही अपने पास रखना है तो हमें हमारी पॉलिसीज बदलने की बेहद जरूरत है सर, जो कि अभी हो नहीं रहा। अभी सभी जो भी 3 पार्टियां अभी सत्ता में है वो सिर्फ अपने एमएलए को कैसे बचाया जाए, अपने पार्टी का नाम कैसे बचाया जाए, चिन्ह कैसे बचाया जाए, इसके पीछे इनको किसानों की कुछ पड़ी नहीं है। ये किसानों के लिए कुछ बना नहीं, और जो भी इनको सत्ता में रहना है इसलिए कभी कहीं पे भी किसी को खड़ा करो, मराठा आंदोलन खड़ा करो, ये अगर राज्य में शांति हो जाए तो लोग प्रोग्रेस के बारे में सोचेंगे। आप उनको प्रोग्रेस के बारे में सोचने का उनको वक्त ही नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा रुक जाएगा तो हमारा स्टेट वापस से अपना नंबर जो है बरकरार रखेगी सर। लेकिन उसके लिए प्लान भी तो होनी चाहिए ना सर, प्लान का मेरा ये कहना है, हमारे पास है ना, मेरा ये कहना है कि मन से एमएनएस आप जो हैं, राज ठाकरे जी जो हैं, अमित ठाकरे जी जो हैं, आप जो हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के लोग, सत्ता से दूर रहते हुए महाराष्ट्र के लिए प्लान कर सकते हैं, और ये सत्ता में रहते हुए प्लान नहीं कर पा रहे। मतलब ये क्या है? और फिर भी लोग इनको वोट क्यों देते हैं? मैं बार बार ये हर एक से सवाल पूछता हूं कि इनको वोट क्यों देते हो आप लोग? अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे। जिस दिन वोटिंग रहेगा महाराष्ट्र के किसी भी ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में आपका रिप्रेजेंटेटिव मेरे साथ भेजिए, मैं उस पूरे रात में क्या क्या चलता है इलेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको समझ में आएगा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना महाराष्ट्र में इलेक्शन क्यों हारती है। क्योंकि ये जो धांधली होती है ना, उसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कभी शामिल नहीं होती। अगर हमने सोचा कि इसमें हम शामिल होंगे और सत्ता में आएंगे तो उनमें और हमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा सर, तो हम इससे थोड़ा दूर ही रहते। अभी भी आपने देखा रहेगा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सभी कार्यकर्ताओं को माननीय राज साहब ने कहा कि आप किसी भी जाति पाति पे बात नहीं करेंगे, जो भी कहना है, जो भी आंदोलन जाति पे चालू है उस पर मैं ही बात करूंगा, आप कोई बात नहीं करेंगे। तो वो चाहते हैं कि हम इन सब चीजों से दूर रहे, हम सिर्फ महाराष्ट्र के प्रोग्रेस के बारे में बात करें, ये माननीय राज साहब चाहते हैं, इसलिए हम उस दायरे के बाहर कभी जाते नहीं सर। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। चिले साहब, एमएनएस ने तानाजी सावंत पर आप लोग ने आलोचना करना शुरू कर दिया कि तानाजी सावंत, आपका कहना है कि विधानसभा में झूठ बोला तानाजी सावंत, कि कोंकण में बोलते हर चीज, एवरी क्रिटिकल मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है कोंकण में, तो वही सिंधुदुर्ग टोटली इससे वंचित है। आप भी पूरे कोंकण के दौरा किए हैं, आप कोंकण के हर डिस्ट्रिक्ट में आपको जानकार है कि हर क्या क्या चल रहा है। हेल्थ फैसिलिटीज आपके हिसाब से, मनसे के हिसाब से नॉट अप टू डेट, और आपका कहना है कि तानाजी सावंत जी झूठ बोल रहे हैं विधान भवन में। सर, पहली बात तो जहां जहां आरोग्य केंद्र इन्होंने खड़े किए हैं, ये इनके कालखंड में खड़े नहीं हुए, ये इनके पहले जो सरकारें थी
उन्होंने ये सब आरोग्य केंद्र खड़े किए हैं, लेकिन वहां पे भी ना नर्स है ना डॉक्टर है, वहां पे कोई इलाज नहीं होता। आपको अगर इलाज करना भी है तो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, अस्पताल में लेके आना पड़ता है मरीज को। तो जहाँ पे आपने ये जो बनाया है वहां पे अगर आपने स्टाफ ही नहीं दिया है तो आप किस मुंह से बात करते हैं कि हमने अच्छे फैसिलिटीज दिए। अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आपको जो बेसिक दवाइयां है वो नहीं मिलती है सर। उसके लिए आपको बाजू के मेडिकल शॉप में जाना पड़ता है। जो गरीब आदमी है वो अगर 100 रुपए के भी मेडिसिन नहीं ले सकता, इसलिए वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में आता है। लेकिन वो अगर वो मेडिसिन नहीं ले सकता तो उसको तो मरना ही है सर। और आज तक क्या मुझे अगर कल जमा, तो मैं अभी तो रूरल एरिया में हूँ, किसी भी आरोग्य केंद्र में मैं जाके आपको एक वीडियो बना के भेज देता हूँ, आप देख लीजिए। महाराष्ट्र के, और कोकण में ही हूँ मैं, तो महाराष्ट्र के कोकण में क्या आरोग्य सेवाएं चलती है, ये कितना देर लगेगा सर इनको ओपन करने में। दूध का दूध, पानी का पानी, कल आपको मैं करके दिखाता हूँ, एक वीडियो में अपलोड कर देता हूँ, आप देख लीजिए वो वीडियो। वंडरफुल वंडरफुल। और जो नांदेड़ अस्पताल के अंदर जो इतनी बड़ी त्रासदी हो गई, इतने ज्यादा लोग मर गए, ना जाने कितने बच्चे मर गए, 24 के 27 लोग मर गए इकट्ठे, आज तक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है। और वहां पर क्या इंप्रूवमेंट हुई है, कौन सा नया इक्विपमेंट वहां पर आया है, कितने और डॉक्टर्स वहां पर आए हैं, अभी तक मालूम नहीं है। ठाणे के अंदर भी जो अस्पताल में आग लगी थी, आपको याद होगा, वहां पर भी आगे क्या हुआ है किसी को कुछ मालूम नहीं है। आपको मालूम है कुछ इंप्रूवमेंट हुई हो? कुछ नहीं सर। वो दिखाने के लिए खाली इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाती है, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं। ये सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं जहाँ पे रहता हूँ पनवेल में, वहां पे भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको एक गंदी स्मेल आएगी जो कि मॉर्चुरी से आती है जी। तो ये लोग जो बॉडियां रखते हैं, अरे वो स्मेल से लोग बीमार हो जाते हैं। वहां पे लाइट्स नहीं है, वहां पे स्टाफ नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा खड़ा किया है, लेकिन उसके लिए जो स्टाफ चाहिए वो आपने खड़े ही नहीं किए। उसके लिए जो अच्छे डॉक्टर्स है, ऐसा नहीं कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के डॉक्टर्स को नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, उनको आपने इक्विपमेंट ही दिए नहीं है। और जो इक्विपमेंट आपने दिए हैं वो इतने हाई क्लास दिए है कि वो चला नहीं सकते, उनको ट्रेनिंग नहीं दिया, तो वो ऐसे ही पड़े रहते हैं और फिर बाद में वो खत्म हो जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, सब पैसा पानी में जाता है सर। कितने इंसिडेंट में बताऊं आपको, मैंने आपको कहा ना, मैं एक अगर घूमना शुरू कर दूं मैं मेरी उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन ये जो वो खत्म नहीं होगी सर। दुरुस्त बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। चिले साहब, आप लोग, मनसे ने नवाब मलिक वाले इशू में आवाज उठाया था, फडणवीस साहब ने लेटर लिखा, आपने मगर पूछा इनडायरेक्टली बीजेपी और फडणवीस जी को, प्रफुल्ल पटेल को आपने अपनाया इकबाल मिर्ची होने के बावजूद, और नवाब मलिक को आपने ठुकराया। तो ये नवाब मलिक और प्रफुल्ल पटेल आपने आलोचना किया, एक्चुअली डायरेक्टली आपने देवेंद्र फडणवीस जी को ही आलोचना कर दिया कि आप क्या कर रहे हो, क्या दिखा रहे हो पूरे महाराष्ट्र को। चिले साहब, वो तो देवेंद्र फडणवीस साहब की मजबूरी थी, क्योंकि ये खुद इतना बोले थे देशद्रोही नवाब मलिक, देशद्रोही नवाब मलिक, देशद्रोही। अभी देशद्रोही उनके साथ सत्ता में बैठा है। फोन करके बताओ ना अजित पवार साहब को, ये आदमी नहीं चलेगा। आपको खत क्यों लिखना पड़ा? क्योंकि आपको महाराष्ट्र को दिखाना है कि हम इनके खिलाफ है। अगर आप इनके खिलाफ है तो खारिज कर दो, इनकी जो आमदार की खारिज कर दो। आप कर सकते क्या? नहीं कर सकते। वो आपके साथ में बैठे तब आपने रोका नहीं उनको, तब रोकना चाहिए था सर। दिल्ली में अभी संसद भवन में जो लोग गए वहां पे, आप मुझको बताओ सर, अगर वो स्मोकिंग गन लेके जा सकते तो कुछ भी लेके जा सकते। आपके पास इतने बड़े अजीत पवार है जो कुछ भी कर सकते। तो इतना बड़ा इंसिडेंट 4-5 साल पहले अफजल गुरु के मामले में हुआ था, उसके बाद भी आपकी सुरक्षा यंत्रणा आपको फुल प्रूफ आप कर नहीं सके। 6 लेयर की सुरक्षा यंत्रणा आपके पास है, उससे जाके वो 4 लोग अंदर जाते हैं, सिर्फ अंदर नहीं जाते। मुझको बताओ सर, वो अगर मेटल डिटेक्टर से अंदर जा रहे तो वो गन लेके कैसे गए, स्मोकिंग गन? इसका मतलब अंदर किसी ने उनको स्मोकिंग गन दिया है जी। इसका सीधा मतलब है अपने सब एमपी अभी भी खतरे में है, अभी भी खतरे में है, क्योंकि अंदर के किसी आदमी ने उनको स्मोकिंग गन दी है वहां पे, वो अंदर लेके नहीं जा सकते। तो आप सोचिए सर क्या लेवल की सुरक्षा यंत्रणा है। ये खुद ही देशद्रोहियों को, द्रोही जितने हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और दिखाने के लिए लोगों को बता रहे हैं कि खाली हम इनके साथ नहीं है। सर कल अगर नवाब मलिक बोलेंगे ना
कि मैं 100 एमएलए मेरे साथ लेके आता हूँ, ये उनको उप मुख्यमंत्री बना देंगे सर, इन पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये बड़ी अजीब और गरीब बात है योगेश चेले साहब कि उनके ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है, उनको मेडिकल बेल मिली है, मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मिली है, लेकिन वो नागपुर की असेंबली अटेंड करने के लिए फिट है, जेल में रहने के लिए फिट नहीं है। अजीबो गरीब मसला तो वही तो है ना सर, इतने इंसिडेंट अपने पास है। अभी ललित पाटिल भागा, कहां से भागा? जेल से नहीं भागा सर, अस्पताल से भागा था। तो इनका तो ये सब कॉमन है महाराष्ट्र में सर। एक बार आप अगर बोलेंगे ना किसी आदमी ने कुत्ते को काटा तो हमें आश्चर्य लगेगा, लेकिन कोई अस्पताल से भागा तो हमें आश्चर्य नहीं लगता है, कोई जेल से अस्पताल में गया हमें आश्चर्य नहीं लगता है सर। इतना कॉमन हो गया है सभी। जी दुरुस्त क्या बोले? अगर मैं जब मेरे छोटे लड़के के साथ बात करता हूँ, मुझे डर लगता है कि इसके सामने कौन सा भविष्य हम खड़ा कर रहे हैं सर। हमारा तो ठीक है, हमने सब एडजस्ट कर लिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, ये लड़के कैसे करेंगे? क्योंकि ये हमसे ज्यादा सेंसिटिव है सर। जब इनके सामने ये सब बातें आती है, ये एथिक्स भूल जाएंगे, और जिस दिन आदमी एथिक्स भूल जाएगा वो किसी काम का नहीं रहेगा, ना वो समाज किसी काम का रहेगा। तो इनके दिमाग में ये नहीं है, ये ऐसे एग्जाम्पल्स वहां पे खड़े कर रहे हैं कि यहाँ की जो अगली जनरेशन है वो मालूम नहीं क्या करने वाली है। योगेश चेले साहब, चलते चलते आपसे एक रिक्वेस्ट है, राज साहब को या एमएनएस को या अमित ठाकरे को महाराष्ट्र की जनता क्यों वोट दे, वो जरा आप 1 या 2 मिनट में मराठी में समझाएं हमारे दर्शकों को। मराठी ये मैं पहली बात तो आपके धन्यवाद मानता हूँ, क्योंकि आपने मुझे हिंदी चैनल पे मराठी में बात करने का अवसर दिया है। तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता हूँ कि हमें क्यों वोट देणे। सगळ्यात पहिली गोष्ट, महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं जे अधपतन झालेलं आहे, ज्याच्यामुळे महाराष्ट्राचं राजकारण हे इतर ज्यांना आपण एक्झाम्पल देतो की हे राज्याचं राजकारण खराब आहे, त्या राज्याचं राजकारण खराब आहे, त्याच्यापेक्षा वाईट दर्जाचं राजकारण सध्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू आहे। हे जर थांबवायचं असेल तर माननीय राजसाहेबांसारखा ठामक्या नेता इथे त्याच्या हातामध्ये सत्ता असणं गरजेचं आहे, अन्यथा महाराष्ट्राचा दहशतवादी राज्य होण्यापासून महाराष्ट्राला कोणी थांबवू शकत नाही। तुम्हाला जर नैतिक राजकारण हवं असेल, तुम्हाला तुमच्या मुलांचं भवितव्य चांगलं हवं असेल, तुम्हाला वाटत असेल की तुमच्या मुलांनी पीएचडी करावी, तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेशिवाय तुम्हाला पर्याय नाही। आज आमच्या हातात सत्ता नसताना सुद्धा तुम्हाला कोणतीही अडचण आली तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या शाखेमध्ये तुम्ही येता। तुम्ही कुठल्याही राष्ट्रवादीच्या, भाजपाच्या किंवा शिवसेनेच्या किंवा शिंदे गटाच्या शाखेत जात नाही, तुम्हाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचंच कार्यालय आठवतं। जर तुम्हाला तुमच्या अडचणीच्या काळात आम्ही आठवतो, तर ज्या दिवशी तुमचा चांगला दिवस असतो म्हणजे मतदानाचा दिवस असतो, त्या दिवशी तुम्हाला आम्ही का आठवत नाही, हे आमचं दुःख आहे। आणि हे आज मी नॅशनल टीव्हीवरती मानतोय की तुमच्याकडे माननीय राजसाहेब ठाकरेंसारखा एक असा नेता आहे जो महाराष्ट्राला चांगलं भविष्य देऊ शकतो, जो सत्तेमध्ये नसताना सुद्धा महाराष्ट्र कसा असला पाहिजे याची ब्ल्यूप्रिंट तयार करतो। अशा माणसाला तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवताय, हे त्यांचं नाही तुमचं दुर्भाग्य ठरणार आहे। पुढच्या 5 वर्षामध्ये तुमच्या लक्षात येईल की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला, जे आमच्यासारखे तरुण आहेत, त्यांना तुम्ही सत्तेपासून दूर ठेवून महाराष्ट्राचं किती नुकसान करता येते। त्यामुळे माझी हात जोडून विनंती आहे की यावेळी ज्या निवडणुका येतील त्या निवडणुकांमध्ये आमच्यासारखे तरुण मुलं, जी तुमच्या घरात सुद्धा तरुण मुलं आहेत, उद्या जर आम्हाला एक निवडणूक जिंकण्यासाठी 1 ने 1.5 करोड खर्च करायचे असेल, आम्ही पैसा आणायचा कुठून? तुमचा मुलगा उद्या राहिला तर त्याने 1.5 करोड कुठून आणायचे याचा विचार करा आणि तुमच्या आजूबाजूच्या सर्वसामान्य मुलांना निवडून द्या, माझी तुम्हाला हात जोडून विनंती आहे। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच योगेश चेले साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, लवली मैसेज, बहुत फर्स्ट क्लास संदेश। आप चलिए, आप अपने गांव चलिए और जरा अपने वादे को भूलिएगा नहीं, वो फुटेज वीडियो जो है बना करके भेजिएगा जरूर। सर कल जरूर मेरे फेसबुक पेज पे वो वीडियो जरूर आएगा सर। राइट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार सर। थैंक यू सर, नमस्कार, वंदे मातरम, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी सर। Well, that was nice. Fantastic. That was really and truly nice, and things are hotting up as far as Maharashtra is concerned. Even the elections in Maharashtra are going to be after some time. First the Lok Sabha elections, and then after that we'll see what happens next.
And even in the Lok Sabha elections, I'm not sure if the triple engine sarkar, as they call it, is really going to work. And at the moment with us from the NCP, Mr. Sharad Pawar, we have Mr. Vikas Launde. Vikas Launde साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार, कैसे हैं सर, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ. आप गाड़ी में से हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत हाँ, मेरे को 8:30 बजे का टाइम दिया था. बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. अब ये बताएं सर, ये बताएं, ये ट्रिपल इंजन की सरकार जो है, ये इंजन तो अलग तीन दिशा में जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ठीक ठाक चल रही है अभी? कहीं मुझसे गलती हो रही है क्या? जी, ट्रिपल इंजन खोके सरकार उसके बोलते हुए, 2 नाम है उनका जी. ट्रिपल इंजन खोके सरकार वो जो महाराष्ट्र में चल रही है, वो महाराष्ट्र में अभी मराठा वर्सेस ओबीसी, ओबीसी वर्सेस मराठा, ऐसा जो कुछ हुआ है वो ये ट्रिपल इंजन खोके सरकार की वजह से हुआ है. उन्होंने जानबूझकर ये स्थिति महाराष्ट्र में की है और उससे पूरा महाराष्ट्र अस्वस्थ है. और जो मराठा समाज की मांग है आरक्षण की, वो कैसे देंगे ये सरकार बता नहीं रही है. अभी असेंबली में वे बहुत एमएलए क्वेश्चन कर रहे हैं सरकार को कि कैसे देने वाले आप आरक्षण, रिजर्वेशन कैसा मिलेगा, ये अपना फॉर्मूला बताओ. लेकिन सरकार बता नहीं रही है. और जो अनशन करते हैं, जो आंदोलन करते लोग हैं मराठा के, उनकी दिशा भूल हो रही है. दूसरी बाजू में जो किसान लोग हैं, उनको जो फसल गए उनको जो पीक बीमा जो मिल रहे पॉलिसी वो नहीं मिल रही है. जो प्याज जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है. जो किसान लोग हैं वो भी अस्वस्थ है. बेरोजगारी बहुत बड़ी है इधर. मैंने अभी युवा आमदार हमारे रोहित दादा पवार, उनके नेतृत्व में हमने युवा संघर्ष यात्रा की. मैं उनके साथ खुद चल रहा था. 800 किलोमीटर हम पैदल चले पुणे से नागपुर. बहुत लोगों से बात की हमने. वो लोगों से बात करके हमने बहुत देखा कि कितनी बड़ी बेरोजगारी है. किसान लोग कितने हालात में जीने जा रहे हैं. सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या चल रही है. कोई विकास नहीं चल रहा. लेकिन ये विकास के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे चल रहा ट्रिपल इंजन खोके सरकार पूरा अस्वस्थ है. लोग उनको 2024 में सबक सिखाएंगे ऐसा लगता है. हमने बहुत बड़ी रैली परसों नागपुर में निकाली. हमारे ऊपर भी लाठीचार्ज किया पुलिस ने. सादा एक हमारा जो निवेदन है वो लेने के लिए गवर्नमेंट का कोई आदमी उधर नहीं आया. और हम अगर निवेदन देने को चले तो हमके ऊपर लाठीचार्ज किया महाराष्ट्र पुलिस ने. हमारी क्या मांग थी? बेरोजगारी की. युवा जो चल रहे हैं महाराष्ट्र में, युवा के बहुत सारे क्वेश्चन है. इधर एग्जाम है, उनके हिसाब से कोई मांग है. किसान की कोई मांग है, महिलाओं की कोई मांग है. ये सब मांग लेके हम चल रहे थे. हम सब लोगों को उधर पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, वो हुकुमशाही सरकार चल रही है ऐसा लगता है. ये सरकार बहुत निकम्मी जैसे चल रही है. वो एक दूसरे को कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन सीएम बनेगा, इस बात पर चल रहे हैं. मुद्दों पे कोई बात नहीं कर रहे. और इसलिए जो नौजवान युवक है अभी, वो राजनीति के खिलाफ चल रहा है. राजनीति का भरोसा अभी उड़ रहा है लोगों का. और इससे जिम्मेदार बीजेपी है, दिल्ली का अदृश्य हाथ है. रोहित पवार का जो संघर्ष, युवा संघर्ष यात्रा है, युवा संघर्ष यात्रा ने हाईलाइट किया, जैसे आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, आरोग्य सेविकाओं के प्रॉब्लम है कि अभी तक उनको वो सेम वेतन मिल रहा है, सेम सैलरी मिल रहा है, ऑर्गेनाइज नहीं है. पर अजित पवार जी ने आलोचना किया रोहित पवार जी का. अजित पवार जी ने कहा कि जिसने अपने जीवन में कभी संघर्ष ही नहीं किया, वो संघर्ष यात्रा क्यों निकाल रहा है? तो संघर्ष, क्या आपको लगता है कि रोहित पवार जी को सब सोने के चम्मच में हर चीज प्रदान हुआ है संघर्ष करने की? कभी जिंदगी में संघर्ष ही नहीं किया, अजित पवार जी का कहना है. संघर्ष मतलब क्या है अजित दादा को पूछना पड़ेगा, क्योंकि अजित दादा ने खुद कभी संघर्ष किया है क्या? वो अजित दादा को नैतिक अधिकार है क्या बोलने का? वो अजित दादा मित्र मंडल जो लोग हैं, उनको हम पार्टी नहीं कहेंगे, वो अजित दादा मित्र मंडल है. क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन के पास अभी अधिकृत नहीं है और चैरिटी कमिश्नर के पास भी रजिस्टर नहीं है. इसलिए वो अजित दादा मित्र मंडल के जो लोग हैं, उनका नेता जो है वो अजित दादा है खुद. तो अजित दादा ने कब से संघर्ष किया है, कौन सा संघर्ष किया है, खुद ने बताना पड़ेगा. रोहित दादा तो एक नया युवा एमएलए है. वो अभी संघर्ष कर रहे हैं. 800 किलोमीटर पैदल चलना ये आसान बात नहीं है. रोज 20-22 किलोमीटर चल रहे थे. हम उनके साथ चले पूरा काल में.
जवळपास एक महीना हम चल रहे थे। तो अजीत दादा ने कौन सा संघर्ष किया है, खुद ने पहला बताना पड़ेगा। नैतिक अधिकार है क्या अजीत दादा को पूछने का, क्योंकि पवार साहब के नेतृत्व में अजीत दादा ने पहले से एमपी से शुरुआत किया, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बाद में वो मंत्री रहेगा अभी 20, 25, 30 बरस। तो अजीत दादा ने कौन सा संघर्ष किया, ये मेरा अजीत दादा को पूछना सवाल है। रोहित दादा ने जो संघर्ष किया, तो नया अभी 37 एज का युवा है, वो संघर्ष कर रहा है, लोगों के अंदर जा रहे हो सीखने के लिए, क्या लोगों के समस्या है वो जानकर अगर जा रहा है तो अजीत दादा ने पाठिंबा देना चाहिए। वैसे तो लावण्य साहब, शरद पवार साहब ने अनियन फार्मर्स के साथ नासिक में संघर्ष किया, मोर्चा में उनका पार्ट लिया। शरद पवार साहब ने कहा कि जो एक्सपोर्ट बैन है अनियंस पे वो विड्रॉ करना चाहिए सरकार, और उन्होंने कहा कि सेंट्रल सरकार इनसेंसिटिव है, किसान के मुद्दे पर सोचते ही नहीं है, किसान के प्रति उनका कोई सेंसिटिव भावना नहीं है। शरद पवार साहब ने कहा। तो बीजेपी का आलोचना था कि पवार साहब ने भी किया था, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पवार साहब। तो ये आलोचना को कैसे देखते हो आप, कैसे? बिकॉज शरद पवार साहब उसके बाद ओल्ड पेंशन स्कीम का एजिटेशन में भी चले गए थे। लावंडे साहब, वो जो भाजपा के लोग आलोचना कर रहे हैं वो राजकीय हिसाब से कर रहे हैं, उनकी वो पुरानी आदत है। आप देखो, पवार साहब जब 10 बरस केंद्रीय मंत्री रहे थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, आज महाराष्ट्र में किसी को भी पूछो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, नाम बताओ। अगर 10 किसानों को आपने पूछा, अगर 2 लोग बताएंगे ना नाम सेंट्रल एग्रीकल्चर मिनिस्टर का, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 10 से 2 लोग अगर बताएंगे किसान, तो अगर किसान का जो हिसाब करना है, जो डेटा है, अब देखो 10 बरस जब किसान का जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे पवार साहब, तो उस टाइम ही हम अन्न धान्य में स्वयं पूर्ण बने। वो जो राइस है वो एक्सपोर्ट किया, गेहूं एक्सपोर्ट किया, कभी इंपोर्ट करना नहीं पड़ा कोई सा माल। जो जो किसान का खेती का माल है वो एक्सपोर्ट कर रहे थे। उसी टाइम अपना किसान का जो रेट है, एग्रीकल्चर का विकास रेट है, डेवलपमेंट रेट है, उसी टाइम बढ़ा है। अभी नरेंद्र मोदी जब से सरकार में आए हैं 2014 के बाद में देखो, वो जो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट रेट है वो कम हो गया है। ये डेटा बोल रहा है ना, वो कौन सा डेटा है? अभी जो खर्चा है किसान का, फसल जो उगा रहे हैं उसका फसल का जो खर्चा है वो 4 गुना बढ़ रहा है, लेकिन किसान का जो पीक आता है, जो फसल है, उनका भाव नहीं बढ़ा। उस चाहे सोयाबीन ले लो, कपासी ले लो, शुगर केन ले लो, प्याज ले लो, कौन सा भी फसल ले लो, उत्पादन खर्च जो है वो बढ़ा है 4 गुना, लेकिन भाव नहीं बढ़े हैं। ये स्थिति है ना। कौन सा शेतकरी है, कौन सा किसान है, ये मान नहीं रहा। किसी भी किसान को पूछो। अब नरेंद्र मोदी सरकार है, वो किसान को 6,000 दे रही है वर्ष, एक साल में, जैसे कि 500 रुपए एक महीना। क्या मिलता है 500 रुपए में? वो जो किसान है उनका खर्चा 4 गुना अगर बढ़ रहा है, वो किसान से ही वो 4 गुना पैसा ले रहे हैं, और उनको 2,000 3 महीने में दे रहे हैं, 6,000 साल में दे रहे हैं। ये सरल किसान लोगों की चेष्टा है। किसान लोग आज पूरी किसान खेती है वो अभी नष्ट हो रही है। किसान के लोग आत्महत्या बढ़ रही है। अभी देखो कल ही आंकड़ा आ रहा है, 8 महीने में महाराष्ट्र में 2,340 कुछ सुसाइड हुआ है किसान लोगों की। ये किसमें काल में हुआ है? देखो ना, दुरुस्त बात। अभी किसान का कोई सवाल ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने छोड़ा है, लेकिन वो झूठी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अभी गाड़ी आ रही है किसान के दार में, जो गांव में पहुंची है मोदी सरकार की, कि कुछ काम किए हैं क्या, वो लोग उधर विरोध कर रहे हैं सब गांव में उनका। लेकिन एक चीज तो है साहब, सीधी साधी बात है, आज की तारीख में जिस प्रकार अजीत दादा पवार साहब ने शरद पवार जी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, बाकी सब किया, हमें तो ऐसा लगता है कि एनसीपी के जो कार्डर हैं, एनसीपी के जो वोटर हैं, उससे काफी नाराज हैं और काफी डिसअपॉइंटेड भी हैं। आपको क्या लगता है? वही है, हमने अभी जो 800 किलोमीटर हम पुणे से नागपुर गए, तो रोहित दादा पवार को लोग दूसरा शरद पवार आ रहा है, शरद पवार की छवि वो रोहित पवार में लोग देख रहे थे, क्योंकि स्वागत कर रहे थे। अगर महाराष्ट्र में मराठा का जो और ओबीसी का जो सेंसिटिव अभी वातावरण है, उधर मराठा लोगों ने गांवबंदी की थी, लेकिन रोहित पवार को किधर भी नहीं रोका। लोग बोल रहे थे अगर रोहित पवार की जगह दूसरा कोई था तो हम रोकते थे, जाने नहीं देते आगे।
लेकिन रोहित पवार को किधर भी नहीं रोका। ये उपलब्धि है। लोग शरद पवार साहब को मान रहे हैं। रोहित पवार का स्वागत हो रहा था, वो रोहित पवार खुद बोल रहे थे ये मेरा स्वागत नहीं है, ये शरद पवार साहब का स्वागत है। लोगों को ये पसंद नहीं आया, अजीत दादा ने जो कुछ किया है वो पसंद नहीं आया है। अजीत दादा और मित्र मंडल जो लोग हैं वो ईडी की वजह से उधर गए हैं, ईडी की वजह से वो जेल में जाएंगे, ये डर उनको लगा और इसकी वजह से वो उधर गए हैं। और भाजपा के जो मिनिस्टर है वो बोल रहे थे ना पहले, अजीत दादा जब से वो अजीत दादा बीजेपी के साथ गए उससे ठीक 4 दिन पहले नरेंद्र मोदी साहब जो पीएम है, पीएम ने वो भोपाल की सभा में अजीत दादा के ऊपर 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था। अगर देश के पीएम बोलते हैं तो पीएम को कुछ ना कुछ जानकारी मिली होंगी पीएम हाउस से, वैसे पीएम नहीं बोलेंगे। देश के पीएम कभी झूठे नहीं बोलते। अगर झूठे हैं तो वो सिद्ध करना पड़ेगा, अगर सच है तो वो भी सिद्ध करना पड़ेगा। कौन सी बात सच है, ये झूठ है या सच है, ये बीजेपी की तरफ से अधिकृत रीत्या देश को बताना पड़ेगा। जो 70,000 करोड़ का जो आरोप पीएम ने खुद किया था भोपाल में, वो सच है या झूठ है, इसका कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना। कौन बताएगा? अजीत दादा और उनकी जो टीम है, अजीत दादा मित्र मंडल है, ईडी की वजह से गए हैं। वो प्रफुल्ल पटेल के साहब के जो घर है वो ईडी की अंदर है ना, ईडी के इंतजाम, अभी जो ईडी की कार्रवाई हुई उनके ऊपर हुई कि नहीं हुई? हसन मुशर्रफ है, वलसे पाटिल है, धनंजय, वो सब मिनिस्टर अभी बने हैं ना, वो सब ईडी की वजह से उधर गए हैं और मिनिस्टर बने हैं। ये लोगों को पसंद नहीं आया है। चाहे एकनाथ शिंदे का जो गया उद्धव ठाकरे के छोड़ को अजीत दादा गए, वो दोनों ही जो घटनाएं है महाराष्ट्र के लोगों को पसंद नहीं है। महाविकास आघाड़ी को 2024 को लोग चुनेंगे और महाविकास आघाड़ी का ही सरकार 2024 में आएगा। विकास लावंडे साहब, दूसरी चीज जो सामने आती है वो ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी से जब यही बात कही जाती है, आपको याद होगा पहले वो एक बहुत अच्छा सा सेंटेंस है, अजीत दादा पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, याद होगा आपको। और उसके अलावा जो आपने अभी आदरणीय सम्माननीय प्रधानमंत्री जी की बात कही कि भाई 70,000 करोड़ का क्या सिंचाई घोटाला, और उसके फौरन बाद अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री बन गए, और तो और छोड़ो, महाराष्ट्र के खजाने की चाबियां भी उनको दे दी, फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। तो ये तो बात है, लेकिन यहां पर दूसरी बात जो सामने आती है वो ये आती है कि बीजेपी से जब ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ है, तहकीकात चल रही है, तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो ये क्या मतलब हुआ विकास लावंडे साहब? नहीं, ये जो बीजेपी का अभी जो दाव है वो दाव अजीत दादा को अभी समझ में नहीं आएगा। अजीत दादा का इस्तेमाल और एकनाथ शिंदे का इस्तेमाल तब तक होगा जब तक लोकसभा इलेक्शन नहीं होती। ये एकनाथ शिंदे साहब होंगे और अजीत दादा मित्र मंडल होंगे, ये सब लोग को भाजपा का दाव समझ में आएगा। अभी अजीत दादा की स्थिति ऐसी हुई है जैसे महाभारत में अभिमन्यु का चक्रव्यूह में पड़ गए थे, वैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अजीत दादा पड़ गए हैं। और बीजेपी के लोग वैसे अजीत दादा को छोड़ेंगे नहीं। वो अजीत दादा के बाद लोकसभा इलेक्शन के बाद में समझ में आएगी। भाजपा को ऐसा लगता है कि जो लोकसभा इलेक्शन है वो 48 सीट है, उसमें से ज्यादा 40 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, वरना नरेंद्र मोदी और अमित शाह, फडणवीस और ये जो बाकी लोग हैं उनके बीजेपी के महाराष्ट्र के, उनको छोड़ेंगे नहीं। उनको अभी वो टारगेट दिया है कि 40 से ज्यादा सीट आनी चाहिए, और इसीलिए एकनाथ शिंदे को साहब को लिया है और अजीत दादा को लिया है भाजपा ने। लेकिन वो लोकसभा के बाद बहुत बड़ी मजा आएगी। कौन कौन से सीट पे लड़ेंगे, अजीत दादा और एकनाथ शिंदे भाजपा के चिन्ह पे इलेक्शन लड़ाएंगे या खुद का चिन्ह उनको मिलेगा, ये सब तमाशा और जो पिक्चर है वो लोकसभा के बाद ही दिखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज तो है विकास लावंडे साहब, एक चीज तो है प्रदीप जी, सॉरी, यस, एक चीज तो है, इतना सब करने की वजह से बार बार आदरणीय सम्माननीय शरद पवार साहब को नोक झोंक करने की वजह से शरद पवार साहब में एक नई ऊर्जा आ गई है। मुझे 15 साल पुराने शरद पवार याद आ रहे हैं अब, जिस प्रकार वो सड़क पर आ गए हैं, जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि मैं भी देख लूंगा तुम सबको, और सबको मालूम है अगर शरद पवार साहब अपने ऊपर आ गए तो ये जितने भी एनसीपी के जो आप अजीत दादा मित्र मंडल बोलते हैं, इनमें से कोई अपनी भी सीट शायद उनको मुश्किल हो जाएगी जीतने में। क्या कहेंगे विकास लावंडे साहब?
लोग वैसे बोल रहे हैं। अब पिछले कुछ महीने में वैसे सर्वे भी बहुत लोगों ने किया था। सर्वे में भी पवार साहब की पार्टी आगे देख रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो नेता लोग हैं उसमें से शरद पवार साहब एक बड़ा नेता है, वो मास लीडर है। पवार साहब ने जो महाराष्ट्र का विकास किया है उसमें से उद्योग लाए हैं, आईटी पार्क लाए हैं, जो रोजगार मिले हैं महाराष्ट्र के लोगों को, वो शरद पवार की नेतृत्व में धोरण लिए हैं, उससे मिले हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों को कहीं स्थलांतर नहीं करना पड़ा, किसी राज्य में नौकरी के लिए जाना नहीं पड़ा। इसकी पवार साहब का वो देन है, ये लोग नहीं भूलेंगे। इससे किसान लोगों को जो मदद हुआ है आज तक गेली 20-25 बरस में, 40 बरस में, वो शरद पवार साहब को ही कामों से मिला है। तो शरद पवार साहब एक मास लीडर है, लोग जानते हैं सब। अजित दादा मित्र मंडल जो लोग हैं वो अभी देखेंगे कि लोग उनको कैसे नकार देते हैं, वो देखते हैं। अभी उनको खुद अनुभव आ रहा है, लेकिन अभी वो चक्रव्यूह मैंने बताया वैसे वो अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में पड़े हैं। शरद पवार साहब अभी जो काम कर रहे हो, आज भी वो 15 घंटे 16 घंटे काम कर रहे हैं। कभी दिल्ली में, कभी इधर नागपुर में जाते हैं, कभी पुणे में जाते हैं, कभी नासिक से जाते हैं। वो हर रोज 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे इसी उम्र में काम रहे हैं। उनको बहुत जोश है अभी वो, और वो जोश से काम करेंगे। लौंडे साहब, मगर जो आप कह रहे हैं सही है। सर्वे हुआ, सर्वे में एनसीपी शरद पवार साहब का 17% वोट शेयर, उद्धव ठाकरे जी का 16%, कांग्रेस 16% और प्रकाश अंबेडकर जब मिलकर आप 50% से ऊपर वोट शेयर आपका है। बट अजित पवार और जो ट्रिपल इंजन सरकार है, ट्रिपल इंजन सरकार बोल रहे हैं कि गेला ग्राम पंचायत इलेक्शन में देखो क्या हो गया। नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 अजित पवार, नंबर 3 एकनाथ शिंदे जी। तो पवार साहब का किधर इन्फ्लुएंस है, उद्धव ठाकरे जी का कहां वोट शेयर है? तो इस प्रकार इस चीज को आप कैसे कॉम्बैट करोगे कि सर्वे में है शरद पवार साहब सबसे आगे है 17% से ज्यादा वोट शेयर लेके, बट असलियत में ग्राम पंचायत, ट्रिपल इंजन का कहना है ग्राम पंचायत ने दिखा दिया कि रास्ता कि 2024 में मोदी रहेंगे और असेंबली में शिंदे, फडणवीस, अजित पवार रहेगा। हाउ डू यू सी दैट सर लावंडे साहब? अगर आप बोलते तो ऐसा अगर होगा तो उन्होंने बताना चाहिए कि ग्राम पंचायत की इलेक्शन जो होती है कोई सी पार्टी के चिन्ह पे नहीं होती है। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह रहता है उसके जो चिन्ह रहते हैं वो ग्राम पंचायत इलेक्शन में नहीं रहते। अगर वो ऐसे बोल रहे हैं तो कौन से गांव में चुनाव चिन्ह उन्होंने दिया था वो बताना पड़ेगा, क्योंकि गांव में गांव की और भाव की रहती है। गांव का इलेक्शन अलग रहता है, वो रूरल एरिया में जो स्थानिक कोई उनके रहते हैं हिसाब एक का जो रहता है वो उसी तरह रहता है। कोई पार्टी का इलेक्शन उधर नहीं होता। अगर उनको इतना ही कॉन्फिडेंस है अपनी जो ट्रिपल इंजन खोके सरकार के पार्टियां जो भाजपा, एकनाथ शिंदे और अजित दादा मित्रों की इतना कॉन्फिडेंस है तो ले लो ना, महानगर पालिका का इलेक्शन ले लो, जेडपी का इलेक्शन ले लो, पंचायत समिति का इलेक्शन ले लो। ये इलेक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? मोदी साहब पहले पवार साहब का बहुत तारीफ करते थे, शरद पवार साहब से बहुत कुछ सीखा है, शरद पवार साहब हमारे गुरु हैं, मोदी जी कहते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी। मगर हाल ही में मोदी साहब ने पवार साहब का आलोचना करना शुरू कर दिया। बोले एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, फिर भी महाराष्ट्र में बहुत डेथ होने लगा है, तो अलग अलग विषय में। मगर शरद पवार साहब ने भी कहा कि मोदी साहब जिस प्रकार से स्टेट में सीएम का आलोचना करते हैं, पार्टी नॉन बीजेपी स्टेट सीएम का आलोचना करते हैं, ये फेडरल स्ट्रक्चर के लिए ठीक नहीं है। और उन्होंने कहा कि विश्व गुरु आपको बनना चाहिए। पवार साहब ने मोदी साहब को बोला विश्व गुरु आप बनना चाहिए, बनो, मगर गांधी और नेहरू को आप डिस्क्रेडिट करके आप ये मत अपना मकसद हासिल मत करो। लावंडे साहब कैसे आप इसको समझाओगे देश को? पवार साहब ने जो नरेंद्र मोदी साहब खुद को विश्व गुरु बोल रहे हैं, उनके जो सोशल मीडिया की वार रूम की टीम है वो भी विश्व गुरु बोल रहे हैं। लेकिन विश्व गुरु बनने से पहले उन्होंने बताना पड़ेगा कि ये देश में कौन सा काम किया है ऐसा कि जो विश्व गुरु के हिसाब से बोल रहे हो, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। अभी ये पूरे इंडिया के लोगों को समझ में आया है। अभी गूगल में भी सर्च किया, फेकू डाला तो किसका नाम आता है? फेकू अगर सर्च किया फेकू तो किसका नाम आता है? देखो हैशटैग बन रहा है फेकू। इतना झूठी बातें करने वाला इस देश ने कभी दूसरा पंतप्रधान अभी तक देखा नहीं है। 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देने वाले, अभी बात की थी 2014 का भाषण निकालो नरेंद्र मोदी साहब का और 2019 का भाषण।
5 बरस में कितना फर्क पड़ा है ये देखो। और अभी 2023 का ही भाषण देखो, इतना झूठा बातें करने वाला कोई पंतप्रधान अब तक मिला नहीं है, ये लोगों को समझ में आया है। उन्हें जुमला पार्टी कहते हैं। अभी किसी एक इंटरव्यू में खुद अमित शाह ने बताया था ये तो चुनावी जुमला था। ये क्या है? नोटबंदी की कितना पैसा ब्लैक मनी बाहर आया? 1 रुपया भी नहीं आया। इतने सारे वायदे किए, कौन सा वायदा पूरा किया? एक ही वायदा पूरा नहीं किया उन्होंने। तो ये सब वायदे किए थे, एक ही वायदा पूरा नहीं हुआ, इसलिए वो तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के लिए वो कोई भी तरीका निकल रहे। विश्व गुरु वो होंगे तो वो कम्युनल जो का अभी चल रहा है देश में, उसके हिसाब से वो विश्व गुरु है। अगर उनके गुरु है तो गोलवलकर, हेडगेवार जो तो उनके आरएसएस के गुरु है, उनका नाम वो क्यों नहीं लेते? उनके नाम, उनका फोटो लगा के वो वोट क्यों नहीं मांगते? उन्होंने सावरकर का फोटो लगाना चाहिए, हेडगेवार का फोटो लगाना चाहिए, गोलवलकर का फोटो लगाना चाहिए, नथुराम गोडसे का नाम लेना चाहिए। अगर कोई इंडिया के बाहर के लोग अगर इंडिया में आते हैं G20 के हिसाब से, तो उन्होंने गांधी के समाधि के ऊपर क्यों लिया? साबरमती आश्रम क्यों दिखाया? उन्होंने हेडगेवार, गोलवलकर, गोडसे का स्मारक देखना चाहिए, उनके नाम से इंडिया को बाहर बताना चाहिए। लेकिन वो वैसे नहीं करते। इंडिया के बाहर जाने के बाद वो गांधी नेहरू की बात करते हैं, इंडिया के अंदर आने के बाद वो अलग बात करते हैं। ये अभी लोगों के ध्यान में आया है। अभी 2024 में उनको लोग, जो उनकी वोट शेयरिंग होती उनसे कम हुआ है, वो अभी बैकफुट पे गए हैं। अभी कल का देखो, संसद में जो बेरोजगार युवक गए वो भगत सिंह के स्टाइल में, अभी उनका तरीका छोड़ दो, तरीका अभी उनका गलत होगा, लेकिन उनकी बात क्या थी? तानाशाही नहीं चलेगी। बेरोजगारी के ये दो, तानाशाही और बेरोजगारी के ये मुद्दों पे नरेंद्र मोदी बात करेंगे क्या? अभी तक ऐसे कभी हुआ नहीं है। संसद में इतने ऐसे तरुण लोग जाते हैं, उनका मुद्दा कैसे छोड़ेंगे? उनका तरीका छोड़ दो, तरीका गलत होगा। अगर नरेंद्र मोदी सेंसिटिव पर्सन है तो उनके कम से कम अपराध में लेके कोई बॉन्ड लेके छोड़ना चाहिए, उनको माफ करना चाहिए, क्योंकि उनका सवाल है बेरोजगारी, उनका सवाल है तानाशाही। ये दो मुद्दे नरेंद्र मोदी कैसे उनके ऊपर मन की बात करेंगे क्या? पूरी इंडिया में वो बात अभी है, पर इंटरनेशनल न्यूज बन गई उनकी। पूरी इंडिया में बात अभी हो गई, पूरे इंटरनेशनल में बात हुई। नरेंद्र मोदी वो बात को कैसे उलझा करेंगे? विकास लावंडे साहब, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, मैं चाहूंगा इस पर जरा आप विस्तार से जरा बात करें। आपके खुद के व्यक्तिगत विचार क्या हैं वो जरा बताएं साहब। मराठा आरक्षण से बात शुरू हुई, जरंगे पाटिल साहब को सामने लाया गया, उनसे एकनाथ शिंदे साहब मिले, एक डेडलाइन दी गई, उसके बाद जस्टिस शिंदे गए और ना जाने और कितने लोग गए। अब डेडलाइन जो है वो 30 दिसंबर की है। उसके पहले इन्होंने कहा है, जरंगे पाटिल साहब ने, 24 दिसंबर तक अगर हमको नहीं लगा कि मिलने वाला है तो हम पूरे मुंबई को, पुणे को, नागपुर को, सबको जैम कर देंगे। और सामने छगन भुजबल साहब जो सरकार का हिस्सा हैं वो खड़े हो गए हैं। वो मराठा आरक्षण को लेकर के बड़े उत्तेजित हैं। वो कहते हैं भाई इनको तुम कुनबी सर्टिफिकेट दे रहे हो, 30 लाख से ज्यादा कुनबी सर्टिफिकेट दे चुके हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ओबीसी रिजर्वेशन उतना कम हो गया। इसके अलावा दंगड़ मूवमेंट शुरू हो गई है कि हमें तो वादा किया था, और देवेंद्र फडणवीस जी ने वादा किया भी था कि मैं फौरन डबल कर दूंगा दंगड़ रिजर्वेशन जो है, या फिर उनको शेड्यूल्ड ट्राइब में ला दूंगा। उसके अलावा महादेव कोली जो हैं वो भी खड़े हो गए हैं, लिंगायत भी खड़े हो गए हैं। तो सर ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? कास्ट वॉर शुरू हो गई है? ये क्या जातीय दंगल, जातीय युद्ध शुरू हो गया है? क्या हो गया ये सर? वैसे तो आरएसएस और भाजपा की जो मूलभूत विचारधारा है वो आरक्षण के खिलाफ है। वो जाति वर्ण व्यवस्था मानने वाले पार्टी है। आरएसएस मनुस्मृति को मानने वाली पार्टी है। आरएसएस और बीजेपी अगर चातुर्वर्ण व्यवस्था मानते, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो अभी ओपनली समर्थन करते पहले से ही। उनको समता जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो तत्व है वो मंजूर नहीं है, वो समरसता मानते हैं। और समरसता मानने वाली आरएसएस बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है, ये पहले से है। छत्रपति शाहू महाराज हो, महात्मा फुले हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हो, इनका जो समता का विचार था, जातीय अंत का विचार था, वो आरएसएस बीजेपी को मंजूर नहीं है पहले से।
फुले शाहू अंबेडकर इन्होंने संघर्ष किया है तो किसके साथ किया है, किसके साथ संघर्ष करना पड़ेगा, उनको करना पड़ा तो वो मनुस्मृति वाले के साथ ही करना पड़ा। आरएसएस हिंदुत्ववादी जो शक्ति है उनके खिलाफ ही वो संघर्ष करना पड़ा। वही शिव शाहू फुले अंबेडकर का ये महाराष्ट्र है, उसमें जातीयंत की लड़ाई अभी बाकी है। वो अभी जो आरक्षण की बात करने वाले लोग हैं, अभी छगन भुजबल बात कर रहे, छगन भुजबल की संगठन है समता परिषद, उन्होंने बताना चाहिए समता परिषद अभी समरसता परिषद हो गई है क्या देवेंद्र फडणवीस के साथ जाने के बाद। समता और समरसता में क्या फर्क है ये छगन भुजबल साहब ने अभी बताना पड़ेगा, वो बताना जरूरी है। अभी छगन भुजबल साहब के कंधों पे बंदूक रख के फडणवीस और बीजेपी इधर ये जातीय टकराव कर रही है, जातीयवाद बढ़ा रही है। वो बीजेपी वाले लोग जो खुद मंत्री है वो कैसे बता सकते हैं ऐसे लोगों को ओबीसी का मेला लेके, और खुद सीएम और कैबिनेट का कोई मंत्री नहीं बता रहा है कि ओबीसी को कि तुमके आरक्षण को कोई धक्का नहीं पहुंचेगा। ये क्यों नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताते, हक ये सवाल है। और मराठा लोगों को ये सरकार क्यों नहीं बताते कि ये आरक्षण कैसे मिलने वाला है। जरांगे पाटिल जो है मांग कर रहे कि सब मराठा को एक साथ कुंभी प्रमाण पत्र दे दो। कुंभी प्रमाण पत्र देने की प्रोसेस तो 2004 से शुरू है इस महाराष्ट्र में, बहुत कुछ लोगों को मिली है पहले से। अभी वो बता रहे कि सब मराठा लोगों को दे दो, वो मिलने वाली है क्या नहीं, ये एकनाथ शिंदे उनका मंत्रिमंडल क्यों नहीं बताते ये मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और जो क्यूरेटिव पिटिशन है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उनका निकाल अभी आने वाला है कुछ दिनों में, वो मराठा नाम पे आरक्षण मिलने वाला है, वो बात अलग है। और जरांगे पाटिल की मांग है वो अलग है, ये दो मांग अलग अलग है। लेकिन महाराष्ट्र की जो ट्रिपल इंजन खोके सरकार है उनको इलेक्शन के अभी मुंह पे अभी जो इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन के जो वोट शेयरिंग करना है, उनको वोट डिवाइडेशन करना है, इसलिए ये काम कर रहे हैं। वो ओबीसी का वोट एक साथ कैसे मिलेगा, मराठा का भी वोट एक साथ कैसे मिलेगा। तो मराठों को हैंडल कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, ओबीसी को हैंडल कर रहे हैं छगन भुजबल और फडणवीस, और अजित दादा वैसे ही बीच में रहे हैं। ये सब जो खिलाड़ चल रहा है जाति के ऊपर, महाराष्ट्र उनको कभी मार्क नहीं करेगा। अभी जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो सब जान गए हैं कि ये कुछ लोग जो बीजेपी के हैं, फडणवीस जिसको ये खेलवाड़ करना है, वो लोग उनको अभी देख रहे हैं, लेकिन इलेक्शन में वो इसमें सक्सेस नहीं होंगे। अभी लोगों को समझ में आया है, छगन भुजबल की बात समझ में आ रही है, और वो मराठा लोगों को कैसे खिलवाते हैं महाराष्ट्र सरकार, वो भी अभी 10-15 दिन के बाद देखना पड़ेगा उनको। तो क्या 30 दिसंबर तक मिलेगा सर आरक्षण, क्या लगता है? ये आरक्षण कैसे मिलेगा ये सरकार ने बताना चाहिए। एकनाथ शिंदे, मुझे समझ में नहीं आया, आपको समझ में आया क्या? मुझे समझ में नहीं आया है, आपको आया है समझ में कि आरक्षण कैसे मुझे भी नहीं समझ में आया, क्योंकि इंदिरा साहनी जो निकाल अभी सुप्रीम कोर्ट और 9 जजेस का बेंच का निकाल है, वो तो बता रहे हैं कि 50% से ज्यादा नहीं कैप लगी है ना उधर। तो अभी कैसे मिलेगा? जो मराठा आरक्षण है वो उनका सोशल जो मागासलेपन बोलते हैं, सामाजिक मागासलेपन उनको कहते हैं, वो अभी तक साबित नहीं हुआ है। कोई राज्य मागास वर्ग आयोग या केंद्रीय मागास वर्ग आयोग ने अभी तक वैसा रिपोर्ट नहीं किया है। तो 50% की कैप है वो कैसे लवांडे साहब 35 लाख का नोंदनी हुआ कुंभी मराठा का, और भुजबल साहब का कहना है कि इस रेट पे आगे चला गया तो मराठा बचेंगे नहीं, सबको सर्टिफिकेट मिल जाएगा कुंभी मराठा का। कैसे देखते हो आप इसको? सबको कैसे मिलेगा? जो भी 35 लाख पुरावे अभी मिल रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, उसमें से कई लोगों को पहले से मिला है। जैसे कि विदर्भ के 5-6 जिले में कुंभी का सर्टिफिकेट वैसे लोगों को पहले से मिला है। उत्तर महाराष्ट्र में भी मिला है, कोकण में मिला है, पश्चिम महाराष्ट्र में बहुत कुछ लोगों को 2004 से आज तक बहुत लोगों को मिला है। उनका ही 35 लाख में उनके ही भी अभी सबूत आए हैं ना। अभी जब सर्टिफिकेट बांटेंगे गवर्नमेंट, जब मिलेगा तब अपने को आंकड़ा सच आंकड़ा आएगा, और जात पड़ताल कास्ट वेरिफिकेशन जब होंगे उनके, तब समझ में आएगा कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को नहीं मिला है। सरसकट सब लोगों को मिलेगा, ये मेरे को सपना लगता है। राइट, सो व्हिच मींस वी हैव अनदर प्रॉब्लम ऑन आवर हैंड्स। सीधी सादी बात है, मतलब ये समस्या जाने वाली नहीं है, कहने का मतलब ये हुआ लवंडे साहब।
हाँ, इतना आसान नहीं है, क्योंकि मराठा नाम पे आरक्षण मिलना ये जी। अलग बात है, और सब मराठा को कुणबी सर्टिफिकेट देना ये दूसरी बात है। ये दोनों बातों में कैसे गवर्नमेंट सक्सेस होंगे ये गवर्नमेंट नहीं बताती है, और मराठा लोगों को ये सपना दिखा रही है। जब तक इलेक्शन नहीं होती तब तक ये सपने ऐसे दिखाते रहेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। विकास लवंडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए। सो नाइस ऑफ यू सर। आपका नमस्कार, जय हिंद, Thank you, sir. वंदे मातरम। थैंक यू सर। Thank you. But that was nice. For the first time, Mr. Vikas Lavande. Yes, yes. And very articulate, very forceful, Bilkul. very straight and upfront. And as he says, Rohit Pawar is the new face of the youth in Yes, NCP. and in fact, he says he's a replacement for Sharad Pawar, sir. Yes, and People are accepting that. And look at the manner in which he has held that morcha in Nagpur and so on and so forth, and he grabbed all the headlines everywhere in practically all the channels, at least in Maharashtra, not in the rest of the country. The rest of the country is very, very busy with itself. But as far as Maharashtra is concerned, I somehow feel, Pradeep ji, that this caste thing is not going to go away. It is going to blow up. It's not just going to fade away. मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए साहब, जरंगे पाटिल साहब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, भुजबल साहब भी अपनी तरफ से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब पीछे जाना मुश्किल है। They can't go back. जैसे समता परिषद को लेकर के और बाकी ओबीसी माली आरक्षण वगैरह को लेकर के भुजबल साहब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और जरंगे पाटिल साहब कुणबी आरक्षण को लेकर के इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब उनके लिए वापस जाना, रिट्रीट करना will be impossible. I don't think he'll be able to. Both things, and both claim that they have more than 50% of the population with them. Yes. Bhujbal Sahab keh rahe 54, Jarange Patil ji says, Manoj Jarange Patil ji says more than 50. More than 50, we are more than 50. So together they have 104. 104%. Yes. And we haven't even counted the Muslims, the Brahmins, Yes, the yes, Kshatriyas, yes, and yes, everybody yes, else over here. yes, yes. So I don't know which planet they're living on. But at the same time, the fact remains that considering what Mr. Jarange Patil has said and the ultimatums that he has given to the government, what happens on 24th of December, on Christmas Eve, when nothing happens? क्योंकि अभी क्या मूवमेंट है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और 30 दिसंबर को क्या होने वाला है मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने भी नहीं है। ये जो क्यूरेटिव पिटीशन है उस पर तो आर्ग्यूमेंट्स भी शुरू नहीं हुई हैं अभी तक, प्रदीप जी। नहीं हुआ ये एज फार एज आई नो इट हैज नॉट इवन बीन असाइन्ड अ बेंच। Not. अभी तक तो बेंच भी असाइन नहीं हुआ। And they're going for Christmas vacations on 20. I think today was the last day. Today was the last day of the Yes, Supreme yes, Court. yes, Yes. yes. तो अभी तो कोर्ट भी खोलेगा जनवरी में, तो मतलब ये क्या होने वाला है सर? ये जरा तकलीफ होने वाली थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है। Has Mr. Shinde tied himself up in knots? I mean, Or are they working to a plan? But what could the plan possibly be? Because you can't. See, sir, if the movements are going now, if you look at the entire, if you postmortem the way Manoj Jarange Patil was talking about Bhujbal, probably Bhujbal was not even prepared at that particular time, and then Bhujbal lashes out, and this battle is going on, Bhujbal versus Jarange Patil. Now it has gone to such levels like never before. No, we have not witnessed anything like this in entire Maharashtra political history. The way they are and aggressively pursuing their cause. But then it seems to be a tactical way that these two are working to a plan. They're working to a plan. लेकिन प्रदीप जी, tactical way तो ठीक है, but somehow sometimes, as it seems to have happened in the case of Maratha reservation, some movements acquire a life of their own. They start to grow organically without the help of anybody. And that's what has happened as far as Maratha reservation is concerned. आज की तारीख में, can you imagine a situation if they don't get Maratha reservation? अगर मराठा समुदाय को मान लीजिए आरक्षण नहीं मिला, फिर क्या होगा? I mean, no, there will be chaos. चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मंच पर कसम खाकर बोले गए that I will ensure justice to Marathas. Sir, justice no to way. Marathas. And I don't think a CM at a public rally takes a promise Pradeep and that to Chhatrapati Shivaji Maharaj Pradeep ji, and then can go back on it. Justice for Marathas need not necessarily mean reservations. It means justice. Now, I don't know what justice means. If it is reservations, how will he give the reservations? Under the 102nd Amendment, he can't go beyond 50% unless the Supreme Court allows it. Then what does he do? Give Kunbi certificates to everybody.
Exactly. That's what Chagan Bhujbal ji is saying. He says now there will be no Marathas left because Everybody will Maratha be a has Kunbi. Kunbi certificate. So there's no Maratha left. तो मेरा ये कहना है कि हर एक को अगर आपने कुनबी सर्टिफिकेट दे दिया तो व्हाट हैपेंस टू द ओबीसी रिजर्वेशन व्हिच इज ऑलरेडी देयर 27% के ओबीसी And that's okay with Manoj Jarange Patil. That's okay with him. But what about the people who are in that 27%? They're feeling saturated. The entire 27% OBC is feeling saturated. भाई देखिए Totally. Where are the jobs? Sir, they will be pushed out. Now, even if you're talking about 35 lakhs, presumably 35 lakhs, when we talked about 35 lakhs, the other political leaders are saying it will go further, double, triple हो जाएगा इसका. So they are Pradeep ji, it will go to 2.5 crores. That's what I'm saying. Yes. वो 2.5 करोड़ जाएगा और जब वो 1 करोड़ का मार्क क्रॉस करेगा या 75 लाख का मार्क जो है वो क्रॉस करेगा, the other communities who are there in that 27% will start to feel the heat. उनका reservation कम होगा. Yes. They're already feeling the heat. In fact, the entire the backward commission, all the office bearers have resigned, including the chairman. ये लक्ष्मण हाके जी और बाकी सब लोगों ने रिजाइन कर दिया. उन्होंने कहा कि आप तो क्राइटेरिया ही बदल रहे हैं without a constitutional amendment. And your government interference. You're saying you're putting pressure on us to function the way you want, and we are not going to function that way. And everybody resigned. Sir, the fact remains that as far as the Marathas are concerned, socially they cannot be said to be backward. सीधी बात है. Politically and socially, the Marathas are not backward. They are backward economically because of various reasons, and which is true for all communities, not just for Marathas. तो उसमें तो प्रदीप जी सबसे ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी जो है वो तो ब्राह्मणों की है, बेचारों की. उनकी तो हालत खराब है, उनको तो कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं है. सर, इसमें क्लियर कट व्हेन मनोज जरंगे पाटिल जी फास्ट पर बैठा हुआ था जी, छत्रपति शाहू महाराज went and met him and openly they discussed that Kunbi and Maratha are the same. बोले कि 6 months you are doing agriculture and 6 months you are on the warfare. So both are same. So, but Mr. Narayan Rane does not agree. Again. So Jarange Patil gave him a reply. He said, जिसको नहीं चाहिए वो मत ना ले. जी. जिसको नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे. जिसको मिल रहा है वो सब ले रहे हैं. लेकिन तकलीफ सिर्फ मराठा की नहीं है ना प्रदीप जी. यहाँ पे ये मराठा तो एक ही समुदाय है. उसमें दांगड़ भी आते हैं, माली भी आते हैं, कोली भी आते हैं, लोहार भी आते हैं, बाकी सब सुतार भी आते हैं, बाकी सब लोग आते हैं. उनका क्या प्रदीप जी? अब आप माली को कुनबी तो नहीं बना सकते, आप कोली को कुनबी तो नहीं बना सकते, आप लिंगायत को कुनबी तो नहीं बना सकते. कैसे करेंगे? तो दे आर टॉकिंग ओनली ऑफ मराठास, कुनबी मराठास एंड मराठास. तो बाकी कम्युनिटी का क्या? बाकी समुदाय चुप तो बैठने वाले नहीं है. They will all be out on the street. They are feeling the heat. बोले कि whatever reservations. So इसका मतलब क्या हुआ? The entire segment is oversaturated. Total saturation point पहुंच गया है. तो कभी-कभी ऐसा होता है ना, जैसे शरद पवार जी के बारे में कहा जाता था कि शरद पवार जी used to plan so much and he used to play so many games that he used to get caught in his own games. Exactly what has happened to him. Maybe the Maharashtra government has also done that. I mean, they have played such a complicated game that now they don't know how to get rid of it. Rightfully speaking, they should have just stuck to what Mr. Narendra Modi said. What Mr. Modi said was there are only 2 castes. One is rich, one is poor. बस that's it. Good morning. आपको अगर यहाँ पे मतलब you want to sit on a fast unto death, please do so. No problem. We'll help you. We'll help the poor. We stand by the poor of the state, of any caste and every caste. I would have expected something like that from this government, from Mr. Devendra Fadnavis and perhaps from Mr. Eknath Shinde. Ajit Pawar, of course, has not committed himself insofar as this particular thing is concerned. अब यहाँ पर आपने मनोज झरंगे पाटिल को प्रॉमिस करके 24 दिसंबर को, सर उसकी डेडलाइन है, अगर उसने देखा कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है, sometimes as I said, you blunder into a situation which is what seems to be happening here. He has said that he will block Mumbai, blockade Mumbai, and he will do it. He will do it because no other Maratha agitation has reached such a level, a decisive level. No, you had the entire administration working, searching evidences about Kunbis. It never happened earlier. Never happened earlier. Let's ask Mr. Ali Daruwala. Daruwala Sahab is with us right now. Ali Daruwala Sahab, namaskar. Namaskar, good evening, Jai Hind. Jai Hind, sir, Jai Hind, Jai Hind, Har Har Mahadev. Sir, we dragged you out of a wedding. Oh God.
So kind of him to be. No problem, Rajiv sir. It's a pleasure, and really, I'm looking forward to be with both of you. It's what they call service beyond call of duty. बट अली दरवाजा साहब, अब तो जबरदस्त हो गया सर। अब तो कृष्ण जन्मस्थान भी आने वाला है। मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, कोर्ट ने भी अनाउंस कर दिया, सर्वे ऑफ कृष्ण जन्मस्थान। तो सो दी ओल्ड promises, all the commitments made by the Bharatiya Jansangh in 1954 are all being fulfilled by Mr. Modi. Repeal of Article 370, Ayodhya, Mathura, Kashi, and Uniform Civil Code remains, which is also coming. So congratulations. And yesterday Amit Shah said Uniform Civil Yes. Code will be implemented. क्या कहेंगे सर इसके बारे में, दारवाला साहब? Sir, I happen to be parachuted here, as I always tell you. I come from the SANGH. I was working with Honorable Indresh G. Kumar. As you said, this Article 370-35A, Triple Talaq, you forgot to mention. I worked myself day and night on the Triple Talaq bill. Now, this is done. Done is done. Let's not discuss about it. Now, let me talk about what we need to do further. Agenda please. 2024. Agenda 2024 is we are setting ourselves a higher goal, a higher aim. And I would like to tell the audience through your platform, is the ideology, the benchmark, the goal is set by the Sangh, BJP, Narendra Modi ji, Yogi ji. We all get together and we work tirelessly without being deviated to reach that goal. And what is that goal? And on your platform, I can tell you openly today, because I was part of it yesterday, is China. Is China आपकी सीमा, आपका जो दीवार है वो है, ना कि सियाचिन, ना कि तिब्बत, ना कि आपने ये जो अग्रेशन किया है गलवान घाटी से, आपको खदेड़ के हमने बाहर निकाला, आपको खदेड़ के हम जो आपकी सीमा की जो दीवार है वो आपकी सीमा है और आपको वहां पर जाना पड़ेगा. And our goal is to push China back. Our goal is to get those 24 Vidhan Sabha constituencies, which is Pakistan occupied Kashmir, is to get that and to hold elections in 2024. I am speaking too big. Yes, the goal has been set, the narrative has been set. 12 जनवरी को प्रभु श्री राम का वस्त्र उन्हें हैंड ओवर किया जाएगा. 22 को 11 बजे से 2 बजे तक उसका अनावरण होगा. उस दिन नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया गया है. वहां से जो प्रसाद निकलेगा, लाखों करोड़ों लोगों तक वो प्रसाद के अंदर और भी प्रसाद मिक्स होके 12 करोड़ लोगों को वो प्रसाद दिया जाएगा. और जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आपका मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गिरिजा और चर्च है, वहां पर आप बैठ के वहां पर आप प्रार्थना करेंगे, अर्चना करेंगे और प्रभु श्री राम का जो अनावरण हो रहा है उसके अंदर ईच एंड एवरी जनमानस इन्वॉल्व होगा. This is the target set for 2024 and BJP is going to work tirelessly. 2047 पे मोदी जी तो नहीं रहेंगे, but 25 years from now India is going to be superpower and we are taking India as number 1 nation in the world, not 2 or 3, sir. This is the goal set by the Sangh for the BJP and that is where we have to work, and from here we begin, and from today we begin, sir. Fantastic. So we have got you at the right time. We have got you absolutely at the right time, but congratulations. Just one small clarification. The ban on triple talaq is actually the ban on verbal triple talaq. Not a ban on triple talaq, but a ban on verbal triple talaq. And that, by the way, is a great achievement. One of the biggest achievements for any Prime Minister ever. And as Pradeep ji is so fond of saying, Mr. Modi becomes the first Prime Minister ever of independent India actually to have gone to the Krishna Janmasthan temple. मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान मंदिर में सबसे पहले प्रधानमंत्री गए. आज तक कोई प्रधानमंत्री वहां गया ही नहीं सर. मतलब exactly this is shocking for me. At least it is shocking. I would have thought at least Pandit Nehru, exactly. I would have thought अपने PV नरसिम्हा राव या कोई और तो गया होगा. कोई नहीं गया सर, अकेले मिस्टर मोदी. तो और साथ में वहां पे प्रॉमिस भी किया मोदी साहब का जो वादा है कि ब्रज भूमि का भी सुधार होगा और ऐसा होगा कि जैसे जब वहां पर रासलीला गाई जाती थी बिल्कुल वैसा होगा. ऐसा बोला सर उन्होंने. बताएं सर.
This is absolutely fantastic. Ali Darwala sahab. यस, कमिंग टू ज्ञानवापी, कृष्ण जन्मभूमि, वाराणसी, और ये जो जन्मस्थान के बारे में कहा जाता है, इन ओपन फोरम देयर इज अ सर्टेन कम्युनिटी, दे आर आस्किंग, दे आर वरिड एज टू जैसा अयोध्या में हुआ, जैसा आप ज्ञानवापी की बात कर रहे हो, जैसा आप कृष्ण जन्मभूमि न्यास के बारे में आप बात कर रहे हो, क्या आप वैसा बाकी जगहों पर भी करेंगे क्या? तो रिप्लाई टू दैट ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड मेकिंग माई वर्ड्स वेरी गार्डेड, सर वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज से 500 साल, 600 साल, 900 साल पहले आप, मैं और अन्य लोग ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे, और हिंदू इज वे ऑफ लाइफ, नॉट अ रिलीजन. Slowly, with the advent of the Mughals and the advent of various people converted. 99% are converts. There might be 1% who have shifted from Saudi or from Iran or wherever. They all are converts. So we should not mix our words. यहाँ पे जो भी जन्मस्थान थे, जो भी यहाँ पे पूजा घर थे, वो हिंदुओं के थे. अग्रेशन से यहाँ पर उसको कन्वर्ट किया गया, ना कि कोई भी यहाँ पर जो हुआ है. इफ इट इज रिवर्टेड बैक, इस्लाम के अंदर एक बहुत ही अच्छा एक प्रोविजन है, जहाँ पर कोई वाद विवाद है वहाँ पे अल्लाह का घर नहीं हो सकता, वहाँ पे आपकी नमाज कबूल नहीं होती. और ऐसे अग्रेशन की जगह पर, जैसा ज्ञानवापी एक एग्जाम्पल है सर, वहाँ पर मस्जिद बनाना, ये एक टोटल इट्स अ नो. If at all it is gone back to the Krishna Janmabhoomi, which is again a prophet for Hindus, and even we look upon and we really have reverence to Lord Krishna. If it is done, I feel Muslims should be the happiest, because ये देश में मुसलमान जितना सुरक्षित है और जितने मस्जिद ये देश में है, उतने वर्ल्ड में अन्य कोई भी जगह पर, कोई भी स्थान पे नहीं है. So I am being very direct with you in this debate today, because last 5 days you may be seeing I have been missing. We have been working with the Sangh, with Honorable Indresh Kumar ji, and this is what the agenda is going to be, and we are going to go ahead, क्योंकि राम राज्य आने वाला है, जिसके अंदर मुसलमान भी सुखी रहेगा, हिंदू भी सुखी रहेगा, और अन्य सारी जाति और धर्म सुखी रहेंगे. और ये बात हम अपने दर्शकों को बता दें, जैसे स्मॉल साइड, एक छोटा सा फैक्ट है, ये फैक्टॉइड जिसको बोलते हैं, कि 30 साल पहले विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक ऑफर गया था कि भाई ये 3 जगह हमको दे दीजिए, वी विल नॉट क्लेम एनी अदर प्लेस. काशी, मथुरा, अयोध्या, ये 3 जगह हमको दे दीजिए, बाकी हम किसी और जगह की तरफ देखेंगे भी नहीं. भाई आपने मना कर दिया, अब आपने मना कर दिया, आप रोइएगा नहीं. नाउ वी विल क्लेम एवरीथिंग. जहां जहां पर फैक्ट्स हैं, 40,000 मंदिरों को तोड़ करके आपने वहां पे मस्जिद बनाई, दरगाह बनाया, पता नहीं क्या कुछ बनाया वहां पे, तो अब तो वापस आएगा ना सर वो. क्यों अली दारूवाला साहब? If you have offered and if you have refused, you are only to blame for it yourself. जी अली दारूवाला साहब बताएं. Rajiv sir, you know, the fact of the matter, if you see, for 60 years this thing could be resolved, but it was in the benefit of the Congress to keep the issue, the topic burning. Previously I spoke in Hindi, because you know there is a certain sect which is in your viewership, they could understand what is the link, what are we going to do, but these issues were never solved, sir. Now, as I say, ab ki baar 500 par with the Lok Sabha, Rajya Sabha, passing the bills, getting the right done, and evading the wrong, and finishing the chapters, because we need to wind up the small things, which is a very large thing for the Hindu community, because their Shraddha is connected to it. We need to move to the larger side. India needs to become superpower, but this nagging issues keep coming up, and as I tell you sir, these are not our agenda for the election, sir. I told you 370, 35A, Kashmir abrogation, Uniform Civil Code, new education policy, this all is done. This was the agenda of RSS. We're in power or we are not in power, makes no difference. We are working on it. With being in power, yes, I agree, it becomes simple. The Congress is not allowing the House to function. The Congress, Mallikarjun Kharge, continuously, dono, Lok Sabha and Rajya Sabha, continuously adjourned. The Congress, Mallikarjun Kharge says 15 MPs who have been suspended. You have not suspended 15 MPs, but you have suspended democracy in India. Mallikarjun says, Kharge says that you have suspended democracy in India. They want the Prime Minister to speak on the security breach in Parliament. They want the Home Minister to resign.
They want the security of the parliament and security of India to be discussed and punish the BJP MP or who has issued the passes to these people to come in. Dadwala Sahab, a tall order from Mallikarjun Kharge. It is showing Mallikarjun Kharge ji's mansha. ये हाउस को इसलिए वो ऑपरेट नहीं होने दे रहे because there are landmark bills that are going to be passed in this session. The Uniform Civil Code, the new education policy is done now. Implementation, it becomes a rule. The Uniform Civil Code has to come. These people have kept all these things, and once we go in for 2024 election, these are the things we promised it in our agenda, and they want us to like say, अरे आपने तो ये promise किया था, ये नहीं हुआ, आपने तो आपका promise पूरा ही नहीं किया. This is the dirty gutter politics Congress has been doing, and the reason they are not letting the House function is because they do not want this country to go ahead. They want these burning issues to remain so they play उनकी चपाती जो बोलते हैं रोटी इसके ऊपर बोलते हैं ना सेकने का काम ये कांग्रेस करता है पर ये बीजेपी इनका सपना साकार होने नहीं देगा. Right. Rahul Gandhi, yeah, जी, Rahul Gandhi ji accused, he says 13,000 in last 5 years. Darwala Sahab, last 5 years, Rahul Gandhi's statistics says that 13,000 students left the IIT, IIMs. They left it. They are all OBC, SC and ST. That is what Rahul Gandhi says. Now, when he says that OBC, SC, ST has left this institution, it castigates the government, the central government, that your policies, whatever reason, why have they left? Rahul Gandhi. Now, how do you face these charges? Are you against OBC, SC, ST studying? I would love to answer this question. This number that he's got, that 13,000 people have dropped down. Yes. So have you seen the startup icons? Who are these people, sir? These people are from the very simple families. They have crossed that 100 crore company startup. These are the people who have dropped out from there and they have started their own business. The startup का जो एक संकल्प था मोदी जी का, educated people have found the business opportunity in this country. And this icon, the 100 plus icons that came, we always keep talking about the icons. There are thousands and thousands of startups with these youngsters, these young people who OBC, SC and ST category, गरीब के माँ बाप के बच्चे ने ये धंधा शुरू किया है और ये धंधा आज एक ऐसे लेवल पे गया है जो हमारे देश के GDP को, ग्रोथ को एक नवे लेवल पर लेकर गया है. I am proud these people have opted, जब गुलामी से नौकरी से बाहर निकल के ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं. दिस इज द बिगिनिंग सर. रोजगार ये देने वाले बनेंगे, ना कि रोजगार मांगने वाले बनेंगे. Fantastic. Rahul Gandhi further says that 15,783 unemployed youths have committed suicide. They committed suicide because they were unemployed. Now this is 2022 statistics, government statistics that Rahul Gandhi is giving. Not only unemployed youths he is talking about, Mallikarjun Kharge goes ahead to say that agricultural sector is down. The BJP as promised, the agricultural sector has not boomed, but it has gone down. He says 31 farmers are committing suicide every day. Darwala Sahab, 31 farmers. Mallikarjun Kharge says 31 farmers are committing suicide every day. That Modi Sahab ka promise, farmers income dugna, agriculture sector mein ye kar dunga, kuch nahi hua. The promise not fulfilled. Darwala Sahab. Pradeep sir, Rajiv sir will be witness to this. I'm sure he was in active politics, he was covering active politics. The farmer suicide menace was at its peak before 2014. I remember it was such a big menace. Farmers were committing suicide like left, right and center. It was petrifying. We have tried to bring it down. I agree. And my Prime Minister has said, ये देश के अंदर जो जमात है, इसके तो स्त्री है, एक गरीब है और एक फार्मर्स है. Sir, he said, मैं ये लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ. We agree and I salute you for bringing it to the OTT platform over here. Yes, we need to work for the farmers. जितना भी करो ये जो शेतकरी है इसके लिए कम है क्योंकि it's a very uncertain business they are doing. There can be rain, there can be, so it's really very saddening because I also have a small farm where it's very uncertain. You don't even break even at times. The outgoings really siphon off your working capital.
Yes, I do agree. Farmers are living in a very shame, in a very bad condition. Yes, पहल चालू है महाराष्ट्र में, देवेंद्र फडणवीस जी सेंटर के अंदर नरेंद्र मोदी जी एग्रीकल्चरिस्ट के लिए काम कर रहे हैं. आई नो इट इज नॉट इनफ, मोर नीड्स टू बी डन. एंड जैसा एक आदमी सब पे भारी, जब ये आपको गारंटी, मोदी की गारंटी देता है कि आप उनका फोकस फार्मर्स के ऊपर है, एंड गिव अस सम टाइम सर. यस इट इज बैड. 31 सर, एक भी फार्मर ने सुसाइड नहीं करना चाहिए. उसके तरफ हमें पहल और उसके तरफ हमें काम करना चाहिए. If it is there, it is my failure. I accept it. We need to work towards it, sir. I don't think you can promise that, sir. Ali Tarwala sir, I don't think you can promise that. I'll be very frank with you, because the extent of the problem is so big that whatever you do will take another 10 or 15 years before everything. Sir, we need to start, sir. We need to start. Sir, it has already started before things come to an even keel. Let's be very clear. But जो आपने अभी मोदी की गारंटी की बात करी, आदरणीय सम्माननीय अखिलेश यादव जी जो अभी इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में बोल रहे थे, उनका मोदी जी की गारंटी हम मानते हैं, बिल्कुल हम विश्वास करते हैं मोदी जी की गारंटी पर. मोदी जी की गारंटी है कि कीमतें बढ़ेंगी, मोदी जी की गारंटी है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, मोदी जी की गारंटी है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ेंगे, मोदी जी की गारंटी है कि जो हमारे फौजी हैं उनको पूरी नौकरी नहीं मिलेगी, सिर्फ 4 साल के लिए मिलेगी और पेंशन भी नहीं मिलेगी. ऐसा अखिलेश यादव जी ने बोला है. Would you like to say something, sir, especially with regard to the petrol and diesel prices and price rise all around? Sir, you will be surprised, sir. As you said, the petrol diesel prices in international market had gone down. I said, let's wait and watch. Yes, there's a deficit that we had to cover, and now they are again at a standstill. We have this, and I always keep telling you, and it is a fact, because petrol, diesel, 80 to 90% is imported. We are totally an import-oriented country. Yes. We depend on lots of factors. But we are working on it, sir. We have been able to strike deals with Qatar where we can pay them, we can get the gas. We have been able to strike a deal with Dubai where our foreign exchange doesn't go. We have got a lovely relationship. Our foreign policies have really been remarkable. We salute our foreign policy, the minister and the full system that is working behind them with ease. I can assure you. I always keep telling you, I don't like to compare ourselves with the other countries, what is happening over there. Yes, 105 is petrol, 96 is diesel. It is constant. Last 2.5 years, sir, the price has been constant. No matter the it's been very volatile in the international market. We have been It's able down to $76, with sir. this best policy, sir. Brent crude is down to $76. I think some of the benefits should be passed on to the customers. Correct, sir. You are right, sir. We need to pass. I told you, like, there was a claim that अभी जो इलेक्शन आए पेट्रोल की डीजल कम करेंगे और इलेक्शन जीतने के बाद वापस रेस करेंगे. I said no, sir. We don't do cheap politics. We did not promise soaps. We do not believe in running a banana republic. We would like to go home, but rather give false promises. But since you've talked about bananas, by the way, the rains have destroyed the bananas. Even the banana crop in Maharashtra has been destroyed. Onion is again on the rise. Yes. There has been a torrential. Last 15 days, as you know, sir, even Bombay, there was a total overcast. Maharashtra has been really at the receiving end, but I'm sure there is a. But in terms of petrol and diesel prices, I don't think Ms. Nirmala Sitharaman can afford to reduce the prices right now. She won't be able to balance her budget. There is no way that she'll be able to balance her budget if you reduce the petrol and diesel prices right now. You may not agree. Our flagship projects are funded from petroleum income. Yes. 100% it is income. With GST income is just a partial, very small amount. Our petrol, diesel income is funding our flagship projects. We are at the fag end of the 5 years of our second term. Sir, we need to finish this flagship project because this is going to boomerang the scene in India, sir. We are really going to propel to a different level of prosperity, sir. Yeah, but the only thing is, I hope the KG3 basin, that is the Godavari basin, you will actually start to develop it. There will be proper exploration over there. And maybe all the fines which have actually been, where ONGC has been responsible for fining oil, will actually be exploited by government companies and not by Reliance Petroleum, as has been done up till now. I don't know whether you would like to comment on that or not. I'm not sure. Reliance is more into refining rather than exploring. Right. I can assure you about this KG basin and this oil wells and this oil reserves that we have.
They are untapped potential. Really? We have the Sundarbans over there. So they are our reserve. When we say they are our strategic reserve, we are going to touch them, we are going to open them in the dire I know state you're in a when hurry. there is dire need. I don't want to open up No, the subject. no. which is- I'll tell you there's about a- this oil there's reserve. a- No, there's a sir. case in the Calcutta High Court. ONGC has filed the case against Reliance, where they decided to do, that pipe dipping, straw dipping, where they decided to dig obliquely into the ONGC oil fields and decided to take out, all the crude oil from there. And amazingly enough, the Calcutta High Court has fined ONGC for it. One does never see. There was a case in Mumbai also about that, but then nobody knows what happened to that. I mean, One does never see. No, Mr. I'll Ali tell you, Daruwala, listen, I don't want to put you into trouble. You don't No, want no, no. I don't think you want to go there. No, it's a technical issue, sir. I'd like to explain, if I'm able to explain to you, sir. Please. Yeah, sir, there is something called as shell cracking, sir. First, in the olden days, there used to be a rig that used to go down straight, and whatever could be sucked out used to be sucked out. But now, with the new technology, the rigs not only go down, they go total sideways, 90 degrees. And this sucking can be done. And this has been followed in US, it's called cracking. Crackle. That's been Oil banned that now. was coming, it was You're talking now, about shale oil. It's been banned now. shale oil. Yes, Correct. but And that's that not is what happened here. That's not what happened here. It was a clear-cut case of robbery. Ali Daruwala Sahab, don't go there. You'll get into trouble. Let's be very clear. Maybe you should speak to Indresh about it. He'll be able to tell you. Yeah, no, Rajiv, so you will just come up with a boomerang, any question, any point of time. But I think it is this oil robbery that you think it can be this that they're trying to bring a stay on, which cannot happen, sir. But it did. It happened. Anyway, if you want, I'll send you the case. I have the entire case lying with me. I have the entire, including the arguments in the court. I'll send it to you on WhatsApp. Please read it, because I know petroleum is your subject. You'll be very interested in reading about it. But really and truly speaking, Mr. Modi has done a wonderful job, especially with regard to Ram Janmabhoomi, Ujjain Mahakal corridor, the Kashi Vishwanath corridor, and as also now work has started on Mathura. But I hope it will not be restricted only to the corridor. I hope the entire city will benefit. I hope Kashi, the entire city, I hope it will get transformed. Because the Kashi Vishwanath corridor is beautiful. But what about the rest of the city? Sir, you wanted to say something. Please go ahead. Sir, a very big flagship program has been launched by the Honorable Nitin Gadkari ji. The Bombay-Delhi corridor, Yes. which used to take 24 hours, will be done in 12 hours. The work has begun. The Bhumi Pujan has done. And all states ki bhagidari isme rahengi. And that's a very big breakthrough. It is not only the corridor from Bombay to Delhi, the routes and all the cities, the Dur-Daraz ka gaon will all be connected, and you'll see the boom that's going to come and that belt how it's going to develop, sir. And we have vision of 40 years from now, when the roads develop, it can be even extended to 12 lanes. So this is also one project I thought we can mention on your platform. But Bombay-Delhi Sharad Pawar corridor. Sahab has some different. Sharad Pawar Sahab was with the Nasik along with the farmers fighting, says the central policies, the export ban on onions is wrong. Sharad Pawar ji says the center, the Modi government is insensitive to the needs of the farmers. Their policies are totally against the farmers' interest. Sharad Pawar ji. From there, he went to attend the old pension scheme, in Nagpur, where all the people, all the employees, all had a big morcha saying implement the old pension scheme. Pawar Sahab is active. Sharad Pawar Sahab is active, but mostly is active because of farmers. He said injustice against the farmers. How do you see that, Daruwala Sahab? 30 years this gentleman has been in politics, and he has been promising to bring farmers to a new light of the day. Why hasn't he succeeded? Why even today he is fighting the mantle? The man promised farmers that he will show them the light of the day, and even after 30 years, out of which this man was in power for last 25 years, sir. If this man couldn't do anything and he has got high expectations on us, I say it is not his fault, it is my shortcoming. We need to deal with it. Sir, the farmer bill, had it come, sir, it would have been a different scene today. And these people are really, really raking the mohalla out of the shortcomings of the farmers bill not being passed. And now, as we say that Punjab needs to be taught a lesson,
this Canadian backing and this money, this funding is the root cause of my farmers today. I am not mincing with my words, and Modi ji is not going to sit idle. Amit Shah sir is not going to sit idle. BJP is going to work. Now the burning issue is Arakshan and the farmers, sir, and we are going to deal head on with this. Right. Fadnavis ji is working 24/7 to solve this problem, sir. Wonderful. Just one small little correction, sir. You said about the Mumbai Delhi Expressway Delhi and corridor. the Delhi Mumbai Expressway. By the way, it will be completed by the end of January. It will be opened. The date has been decided. The Prime Minister himself has inaugurated in totality by 14th of February 2024. It will be opened. Most of it has already been opened. It has come right up to the Lal Sort stretch. I think Vadodara is also open. It has come right up to Vadodara, and very, very shortly in the next 2 months, the whole thing will be completed. So after 14th of February, Valentine's Day, you'll be able to take your girlfriend on a lovely trip to Delhi in just 12 hours. Mr. Ali Darwala. Thank you, sir. The date, you knew the date, so you could disclose it, sir. There are going to be series of inaugurations and series of flagship programs that are coming to the fag end, and till March you will be surprised when we go in. As I told you, sir, you were always asking me about the 5 state elections, kya hoinga. I always stress on it. My flagship program, the Prime Minister's hard work, will yield results for it, and we have yield results in all the states, sir. And I had told you, sir, if you remember, is after that election result, first time I've come, you asking me if this 3-term, 4-term, 5-term people will be given a chance. I said no. Rajiv sir, if you can pull back the Yes. recording, I said it will be new faces You did. which no one has even thought about. Yes, you but did. now let me tell you something today on your platform with full guarantee. We are going in for 2024 with faces, with people who have toiled, who are tainted free, as this, this name that has been given as washing machine. Tainted people come here and they become doodh ka dhula and all this. The party is working on it. The Sangh is directed, which cannot be openly discussed on a platform or with the media. Yes. We are working very strictly. 2024, we are going to leave no stones unturned, and you are going to see a wind of changes, and the people that will come and who will take this country to 2047 will be total, surprisingly different faces, sir. And we are looking at how many seats for the BJP? Ab ki baar 500 par, sir. Wow. Ki baar 500 par. I've stuck to it from day one till today. Yes. Fantastic. BJP alone or for the NDA? So BJP alone, sir, I don't believe in this local, these parties are all going to merge or they're going to disintegrate, and they are totally Wow. withering off this. So 500 plus, remember you heard it all right. are going to wither off. And And I told you about KTR, if you remember, Rajiv sir, Yes, you we used did. to always debate on this. They are all disappearing, sir. I'm not a fortune teller. I work on the ground, so I can tell you with conviction. Yes, Amit Shah ji did say yesterday that हम लोग 2019 के इस figures को पार करेंगे, and Mr. Modi will be back on the saddle in 2024. But your optimism is above board. Fantastic. Absolutely fantastic. Wonderful. Right? Mr. Darwala, great pleasure talking to you. And he's right most of the Always. times. Darwala sahab is right on most of the time. Yes, I'd like to see this figure of 500 plus. That'll be wonderful. Thank you so much, sir. And namaskar to you. Vande Mataram. Vande Mataram. Your channel is really lucky, sir. Whatever I say on your channel comes through, sir. Absolutely. So आपके चैनल को नजर ना लगे. हाँ, come on, ये sir. भी लॉक कर रहे हैं हम लोग. ये Darwala भी lock कर रहे sahab हैं. 500 plus. Yes, you're the only person who said that. और नेशन नाव को नजर ना लगे, इसलिए काली जैकेट पहन के आता हूँ सर. थैंक यू. वंदे मातरम. वंदे मातरम सर. भारत माता की जय. वंदे मातरम. भारत माता की जय. Well, that's nice. That's really truly wonderful, Mr. Ali Darwala. Right. You got a lot of comments. Yes, I know. We've got a lot of comments today. We'll have to take them. In the meantime, do please subscribe to the channel. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें. It'll be nice. It'll be nice for us, nice for everybody else too. As you know, this is an open forum. Everybody gets to talk over here. हम किसी को इंटरप्ट नहीं करते, किसी को रोकते नहीं है, टोकते नहीं है, किसी पे चिल्लाते नहीं है. यहाँ पे आपको जो शाउटिंग मैच होता है ना, चिल्लम चिल्ली का जो मैच होता है, वो नहीं दिखेगा यहाँ पे. उसके लिए there are enough channels all over the place. Yeah?
और सबसे जबरदस्त जो सेक्शन होता है हम लोगों के लिए वो होता है जो आपके कमेंट्स होते हैं. आप अपने कमेंट्स भेजते रहें. प्लीज डू कीप सेंडिंग इन योर कमेंट्स. आई थिंक वी गॉट क्वाइट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज टुडे. लेट्स टेक अ लुक. भेजिए. कैन वी शो इट प्लीज? दिखाएं. कैन वी सी द कमेंट्स प्लीज, इफ पॉसिबल? Thank you. Wonderful. Mr. Deepak, wonderful. Kedar. Mr. Deepak Kedar. First thing everyone needs to do is to stop classifying humans based on race, stop focusing on perpetrated agendas and focus on your life. These people won't get you anywhere. Gary 34, you're obviously not a Dalit, so you don't know a thing about what it feels like to be discriminated against. You don't know a damn thing. Congress only force for unity. I think this was Congress for Unity, joke of the decade. I think that was Mr. Nizamuddin, right? If I'm not mistaken. Congress for Vasant Unity Kumar. of the decade. Yes, जी. it was. Vasant Kumar, ARSC 2562. जी बढ़े, आगे बढ़े. Kedar Saab again. Missionary conversion in Karnataka, Dalit was beaten to death by Islamists in Jharkhand exodus, but still they have problems with upper caste Hindu and they want upper caste Hindus to die so that Dalit will get reservation forever. Low IQ, I'm OBC, I don't have so low IQ. What happened to Dalit Buddhists in Pakistan and Bangladesh? MBCT 8ZK. This is what this gentleman has said. Congress to expose BJP's divide and rule, Mr. Nizamuddin Rahim. Mr. Nizamuddin Rahim sir, Zindabad. ऐसा मुमताज शेख साहब लिखते हैं. मुमताज शेख साहब 3457, a fan of Nizam साहब. He always has something nice to say about Nizamuddin Rahim साहब. And Mr. Deepak Kedar again, I think he got a lot of responses. He got hell of a lot of responses from whatever I saw and whatever you also saw, Pradeep. Exactly. जय भीम. सिद्धार्थ लोकरे, ये ऐसा बोलते हैं लोकारे है कि लोकरे? चलिए बढ़े, आगे बढ़े. The same जय भीम. User GX 1NX4IW6I. Yes, and special ID. Salar KGF star Yash to do cameo in Prabhas. Salar, okay. With Prabhas, suddenly a movie has come in. I mean, Yash is not a part of Salar. Don't waste your time. Mahesh Mogavira KD8. No, people keep this confusing kind of ID. It's very Yes. whatever reason. I don't know why. Deepak Kedar साहब again. जय भीम भाई. सिद्धार्थ मेश्रम लिखते हैं. सिद्धार्थ मेश्रम 3274. ऐसा इनका कहना है. जय भीम टू यू टू. दीपक केदार साहब. He's got lots and lots of responses all over the place. I think I counted about 11. Samvidhan Zindabad, Jai Bhim, Anand Amrit Sagar 654. ऐसा इन्होंने लिखा है दीपक केदार साहब के बारे में. दीपक केदार साहब drew a lot of responses. He came on the channel for the first time, and hats off to you, भाई दीपक केदार. क्रांतिकारी जय भीम. यूजर HH1IB3GW9B. बड़ा यार, it looks like a code. ST persecution still very high. संविधान जिंदाबाद. दीपक भाई केदार आप आगे बढ़े. हम तुम्हारे साथ हैं. अतुल दरक्षे 14AP. Capital A, small p. Again Deepak Kedar साहब. जय भीम सर. जय पैंथर. ऑल इंडिया पैंथर सेना है साहब उनकी. गौरी चानूरे उन्होंने ऐसा लिखा है. जय भीम. I don't know why that thing went off so quickly. What for? जय भीम. जय पैंथर. धनंजय हुम्बे 8198. And somebody's liked it too. And Shah Rukh Khan visits Shirdi Sai Baba temple with daughter Zwana Khan. Shah Rukh Khan is on a pilgrimage everywhere. Yes, he went to Vaishno Devi as well. well. I think this is the third time. Can Hindus visit masjid? Then one side is secularism. Of course you can visit a masjid. Who told you can't visit a masjid? I've been to so many masjids. I've been to so many mosques. By the way, just for the record, It's over. it's over. But just for the record, there is no bar on anyone from any religion visiting a mosque. The only place where you are not allowed to visit, if you are a non-Muslim, is the holy city of Mecca. That is the only place where non-Muslims are not allowed. But in every other mosque, anywhere in the world, there is no bar
on non-Muslims visiting that mosque. So get your facts right, and try not to get your facts from a WhatsApp university. That's all that I can say. And by the way, that is also true for all gurdwaras. That is also true for most temples, at least used to be, not anymore, for most Baudh vihars and even most Jain temples, by the way. But it's good to see that Shah Rukh Khan is visiting a lot of temples. Yes, love it. Now, is it the inner urge or is it the business urge? So whatever you call it, he's still visiting Whatever it temples. is. And That's more important. और सबसे बड़ी बात है शाहरुख खान साहब से प्रेरणा लेकर के न जाने कितने और लोग जाएंगे वहां। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात ये है। और देखिए साहब, शाहरुख खान की 2 फिल्में आई, सुपर जवान और उसके बाद कौन सी आई थी, एक और क्या, पठान। पहले पठान आई, उसके बाद जवान आई, दोनों सुपर हिट हो गई। उधर गए वो वैष्णो देवी गए, और तीसरी बार वैष्णो देवी गए, अब डंकी भी सुनने में आया, ये भी सुपर हिट हो जाएगी लग रहा। Now he visited more temples. Yes. So it might be a super hit. Might be a super duper hit. Zabardast. By the way, I'm a great fan of Shah Rukh Khan, so don't go by what I'm saying. But he was also always a secular Khan. I mean, you didn't have the hard kind of जो बोलते हैं कट्टरता उसमें कभी नहीं था. He was very nice, well spoken, well read. Whenever you see him talk, you can understand this guy is a very reformed kind of a person. Not just reformed, as he says, he's a Muslim and he's a devout Muslim, but his wife is a Hindu and his entire family celebrates all festivals. मतलब दिवाली में भी, नवरात्रि में भी, हर जगह पे शाहरुख खान हमेशा शरीक हुए हैं. And by the way, that is true for the whole of Mumbai. जहाँ तक मुंबई और बॉलीवुड का कल्चर है, बॉलीवुड के कल्चर में कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है साहब, सीधी सादी बात है. और जिन लोगों ने एक्सट्रीमिज्म लाने की कोशिश करी है, उसको पूरे देश ने नकार दिया है, गुड बाय कह दिया हमको, सीधी सादी बात है. लुक एट सलमान खान आज भी घर में गणपति लाते हैं, गणपति की आरती खुद करते हैं, और ढोल भी खुद ही बजाते हैं, खुद ढोल बजाते हैं और आरती भी खुद करते हैं. सबसे बड़ी बात ये है. तो ये साहब, ये हिंदुस्तान है, बॉलीवुड इज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ द एंटायर इंडिया, एंड आई लव इट, एंड आई एब्सोल्युटली लव इट, एंड सो डू वी ऑल. वेल, दैट्स जस्ट अबाउट इट फॉर टुनाइट शो. आज के शो में सिर्फ इतना ही. आप प्लीज कमेंट्स भेजें, send in as many comments as possible, and share the channel, शेयर करें चैनल को, और सब्सक्राइब करें चैनल को इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड ऑलरेडी. और वो जो बेल आइकन जो है ना, जो प्रदीप जी ऐसे करके दिखा रहे थे आपको, वो जो घंटी जो है, उसको अगर आप क्लिक करेंगे, यू विल गेट इंस्टेंट अपडेट्स ऑल थ्रू आउट द डे ऑन वॉट एवर वी आर डूइंग. राइट, दैट्स जस्ट अबाउट इट. आप सब लोगों को नमस्कार. थैंक यू फॉर बीइंग विद अस. नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. हर हर महादेव. हर हर महादेव.